नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त कहाँ, नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको हमारी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तुलसी विवाह है, very sacred and holy day in the Hindu calendar, and those of you who believe, those of you who worship, all the very best to you. मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो व्रत है, आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है, जो भी आपने दुआ मांगी ऊपर से, ऊपर वाले से, वो सब पूर्ण हो और सबका अच्छा हो। जैसे प्रदीप जी, तुलसी has this great amazing power to cure so many ills, and by the way it's the best anti-mosquito repellent. Exactly, sir. Spiritual and medicinal. Yes. Universal application and universal remedy solutions for many things which we talk about, spirituality as well as medicinal value. Holy, right from the tea to holy basil. Bilkul, sir. Which is absolutely amazing. And by the way, lovely to see Mr. Narendra Modi in Mathura yesterday at the Krishna Janmashthan. And as he said, बहुत ही जल्द अब यहाँ पर भी जैसे काशी विश्वनाथ का सुधार हुआ, जैसे राम मंदिर बनना शुरू हुआ, वैसे ही कृष्ण जन्मस्थान में बहुत ही जल्द भव्य कृष्ण मंदिर बहुत ही जल्द बनेगा। ब्रिज, नाइस वर्ड दैट यू, आई लव्ड इट। ब्रिज, जो उन्होंने कहा कि मथुरा ब्रिज, द लैंग्वेज इटसेल्फ इज ब्रिज, सर, ब्रिज भाषा जी। और पूरा एरिया ब्रिज का एरिया ना पूरा। ओके। वो अभी तक उसका सुधार हुआ नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। आई एग्री, वृंदावन वगैरह में 5-star होटल्स बन गए हैं, बहुत कुछ बन गया है वगैरह, देयर आर सो मेनी आश्रम्स एंड स्टफ लाइक दैट। ISKCON has done a lot of work over there, but overall planned integrated development has not taken place. So as we have discussed this so many times over here, न जाने कितनी मर्तबा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है कि किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन कोई 10,000 के करीब ऐसी जगह है, तीर्थ स्थान ऐसे हैं, अगर उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से उनका विकास हो जाए तो मुझे लगता है it will probably be one of the biggest religious tourism destinations in the world. Exactly, sir. And Mathura, I mean, all these places have such a lot of significance. Yes. It is only, now he's talking about 365 holy sites that have been revived across Uttar Pradesh. Now that includes Ram Janmabhoomi. And Ram Janmabhoomi, Krishna Janmabhoomi, if they revive the Krishna Janmabhoomi, we are talking about something, a tourist spot, tourist attraction from all over the world, and it could be one of the most visited sites. You'll have millions and millions of people coming in from all over the world, because they still do. Ram to hai sir, but Krishna has a huge following, huge across the world. The entire ISKCON movement has taken it to a different level. That's right. आप देखिए, अरे भाई पूरे ईस्टर्न यूरोप में, रशिया में, यूक्रेन में, पोलैंड में, हंगरी में, wherever you go, you see these ISKCON Krishnas, doing that Krishna dhun. बिल्कुल। Sri Krishna Jai Jai, Sri Ram Jai Jai. It's really fantastic, and one feels so good looking at it. And in fact, it's spread all over the Middle East also. Everywhere. In some countries in the Middle Africa. East. In Africa. In Africa, you got so many people from Africa who are following this particular movements. Yes. And they sing the Krishna bhajan so beautifully. As also South America, by the way. Exactly, sir. And if Mr. Modi is taking interest, you can be sure he's got something planned. Definitely. मोदी जी सिर्फ ऐसी बात नहीं करते हैं। जब भी मोदी जी कहीं पर भी जिस भी धार्मिक स्थल पर गए हैं और उन्होंने कोई बात कही है तो उसके पीछे कोई ना कोई अर्थ है, याद रख लीजिए। And he talks about पांच प्राण संकल्प, that talks about developing India. He talks about having proud in our heritage, feeling proud about our heritage. Taking people to talking about unity of the country. I mean, he's got a focus very planned. Goal सामने है, लक्ष्य उन्होंने already रखा है, मार्ग भी तय कर रहे हैं, and the ideas are being implemented. And the first thing that I really feel really and truly proud of is the fact that he's not squeamish about saying, hey, listen, I'm a worshipping Hindu, man. I am a practicing Hindu. I am a Sanatani. I love Lord Krishna. I love Shiva. I love Sri Ram. That's it. End of story. अभी तक क्या होता था, हिंदू धर्म के बारे में बात करने के पहले people used to be somewhat apologetic. डरते थे। अरे क्यों भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए साहब,
विश्व हिंदू परिषद ने बहुत पहले भी ये कहा था, भैया हमें ये सिर्फ 3 दे दीजिए, 3 जगह, कृष्ण जन्मस्थान, काशी विश्वनाथ और राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, बस उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने उसके ऊपर रेजिस्टेंस करी, आप रेजिस्टेंस करी, अब तो उनका कहा भैया जो 3 लाख आपने मंदिर तोड़े हैं हम वो तो सारे लेके रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। दे हैड अ चॉइस, दे कुड हैव इजीली एग्रीड टू गिव ऑल दीज 3 साइट्स वॉलंटरली। आप ये लीजिए साहब, बाइज्जत सम्मान के साथ, भारत की संस्कृति का सम्मान करते हुए हम ये सब हिंदुओं को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। I mean, come on. It's a lost opportunity. In fact, that was the greatest. It could have been the biggest bridge the Hindu and Muslim communities. That all this is the way you take. That's your birthplace of your God. We are giving it voluntarily. All these अरे things were- कृष्ण का जन्म स्थान, आप मुझे बताइए वहां पर ईदगाह होगा क्या यार? अरे सोचने वाली बात है, कुछ तो मतलब अकल के दुश्मनों कुछ तो सोचो। In any event, I think we have our old friend Mr. Abhishek Mishra, whom we have seen very prominently featured in the Goa Film Festival. We saw him with all sorts of very prominent directors and stars and everybody else right now. He's everywhere, sir. He's everywhere. You know, whenever you see. He's here, he's there, he's everywhere. Yes. He's all over the place. He's a Scarlet Pimpernel. Mr. Abhishek Mishra from the BJP. नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, नमस्कार नमस्कार। आपको तुलसी विवाह की बहुत शुभकामनाएं। आज तुलसी विवाह है, वंडरफुल। और कल जो हम बात कर रहे थे प्रदीप जी और मैं, नरेंद्र मोदी जी को कृष्ण जन्म स्थान पर देख करके हृदय जो है वो बहुत गदगद हो गया, मजा आ गया देख करके। और जो उन्होंने बोला है कि बहुत ही जल्द ब्रिज का जो असल में रूप होना चाहिए वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो मोदी जी कभी भी कोई घोषणा नहीं करते हैं बिना सोचे समझे। तो दैट मीन्स that entire area where Brij Bhasha is spoken, I think we'll see a lot of development. अभिषेक मिश्रा जी, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो आस्था है भारत के अध्यात्म के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, वो विश्व जानता है और विश्व उसका सम्मान करता है जी। और उसके कारण भारत एज ए राष्ट्र और हिंदुत्व एज संस्कृति जो हमारा सनातन धर्म है उसको भी विश्व ने स्वीकार किया। देखिए, अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बन रहा है। 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये कल्पना से परे था कि अबू धाबी में हिंदू मंदिर, लेकिन बन रहा है। यूएई की राजधानी में हिंदू मंदिर बन रहा है, स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग बना रहे हैं और ये सब जो है ये माननीय उनका इंस्पिरेशन, मोदी जी इंस्पिरेशन। नाउ कमिंग टू मथुरा, तो देखिए ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण, आप सही कह रहे थे शो के शुरुआत में, रूस से लेके ब्राजील तक जी देवता अगर एक कॉमन पर्सन भी अगर जानता है हिंदू डेटी तो वो कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण है जी। मैं दिवाली से पहले रूस के एक राजदूत से मिला, प्रमुख व्यक्ति से, और उन्होंने मुझे पूछा कि दिवाली एट्रीब्यूटेड टू हुम। आई सेड लॉर्ड, जो लक्ष्मी है वो विष्णु जी की पत्नी है, attributed to goddess Lakshmi। तो बोला कि and who is Vishnu? I said Vishnu is the supreme god and all other gods are manifestation। तो उसने कहा कि राम and Krishna they are also manifestation of Vishnu, I love Krishna। So उस रूस के व्यक्ति को विष्णु, मैंने कहा वो सभी उनके अवतार है, तो उसने खुद पूछा अच्छा भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार। So imagine कि भगवान कृष्ण का कितने डीप परमिटेशन है पूरे वैश्विक स्तर पे। और श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन के माध्यम से जो ये बताया कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, इज द सुप्रीम डेटी, और हमारे हिंदू धर्म में भी है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो भगवान का जो फाइनल पर्सोनिफिकेशन है वो श्री कृष्ण है जी। तो जो है समस्त गुण, 64 जितने गुण है, सारे गुण से वो निपुण है। ही द सुप्रीम पर्सनैलिटी, जो श्रीला प्रभुपाद कहते थे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ओके, सो इसलिए भगवान कृष्ण का एक भव्य स्वरूप मथुरा में, और मथुरा की जो पावन भूमि में, और जो भी वहाँ एक इलीगल स्ट्रक्चर बना हुआ है माइनॉरिटी धर्म का जो टेम्पररी है, वो एक अच्छा हिंदू का और भव्य वहाँ बने, उससे वो दैट विल नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू इंडियन स्पिरिचुअलिटी बट इट विल बी द शाइनिंग स्टार ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी। पूरा वर्ल्ड जो है, विश्व जो है, अप टिल वो नॉर्थ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, चाइना हो और नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया हो,
across the earth from Japan, ठीक है, right up to the entire globe. वो ऑस्ट्रेलिया, वो श्री कृष्ण का जो वैभव है, श्री कृष्ण का जो दिव्यता है, भव्यता है, जो उनका एक अलौकिक आनंद है, और जो हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र से आपको प्राप्त होता है, तो वो श्री कृष्ण का अनुभूति पूरे विश्व को और अधिक होगा. इट विल बी एन टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी. Fantastic. Ram Mandir. And the other thing, Pradeep, Yes, one other thing, one very good news Yes, indeed. yes. I really would like to inform our viewers. I'm sure Abhishek Mishra ji would be knowing about it already, and it's really heartening. The 8 naval officers who had been sentenced to death by the Qatar court, their appeal has been accepted for hearing, and the new date of hearing will be announced very shortly. The entire legal defense, all the expenses are being paid for by the Modi government, and the Modi government has been in touch with the Qatar government and their legal department and has been working very, very closely with them. So great news, Abhishek Mishra ji, that is fantastic news. Would you care to say something about it? I think congratulations to the External Affairs Ministry and the manner in which they have followed up with Qatar, sir. See, be factual. So this is the first step. The court there has agreed to hear the appeal. Yes. It's the first step in the right direction. It is so. Yes, the MEA has succeeded to at least temporarily pause the death sentence. See, as Indians, we should be happy about that. That by accepting the appeal, the earlier order of the death sentence has been temporarily suspended. Yes. So now a fresh appeal will be heard. Once again, both sides parties will be heard. So this is a major success in at least halting the death sentence by the MEA and getting once again a hearing in front of the Qatar courts. So this is definitely a major milestone, a major step, and definitely a step in the right direction towards saving the 8 Indian lives, precious lives. And I hope, as I think Mr. Jaishankar said just the other day, we shall bring all our boys back home. I hope it happens. We really see hope it happens. extremely aggressive external affairs minister that reflects on the leadership of Narendra Modi. Yes. That's, we never so dominant in world affairs as we are today, Abhishek Mishra ji. Kabhi humne dekha nahi. We are taking on the US, we are taking on the allies, we are also patchy with Russia, we are talking to Iran. We have no enemies. As Jaishankar put it, the people's what the people require is what we care about. We are not caring about what the US thinks about us or what the Western allies thinks about us. It is only our people that matters to us. It's a fantastic, this kind of aggression never seen before. Abhishek Mishra ji. See, aggression is not the right word. India is a peace-loving country, and our diplomacy is geared towards fostering good relations. So, aggression, I was not the word to equate with our country, with India. I would say this is self-confidence. This self-confidence of a country which is the third largest economy, which is a vibrant democracy, which is globally a major player, which is a leader of the global south, and whose voice is heard across the world. So, it is our self-confidence that is coming across here. Okay, so the better word to use would be, finally India has become assertive. we are asserting ourselves the way we ought to on the world stage, which is absolutely fantastic. And that's exactly what we are doing. And what Mr. Jaishankar said the other day, I think holds a lot of water. As he said, the entire West and Europe should be very, very happy at the fact that it is India's purchase of Russian oil which has managed to balance the world economy. So they should be thanking us, rightfully speaking. But in any event, you don't expect all these white guys to come along and say thank you to India. They don't do that. And they're not mincing words. The point is, the External Affairs Ministry is not mincing words to flaunt our relationship with which the allies think is, not a right country or not a country that we should deal with. And openly telling that yes, we are going to do it. We are going to deal with Iran. We are going to do it. As we said the other day, Abhishek Mishra ji, you were right here on the show. और जैसा आपने भी कहा और यहीं पर जो discussion हुआ कि tomorrow the relations with China normalize, they'll normalize. Chinese are also our friends. We don't regard them as our enemies anyway. There is a problem with regard to the, to the line of actual control to the LAC on the Ladakh border and somewhere in the northeast. But that's a problem which has been ongoing now for the last 70 years. But otherwise, we are cooperating with the Chinese everywhere, and the Chinese are cooperating with us. And we are competing with the Chinese everywhere, which is fine, which is absolutely fine. And the stand in Canada, yes, telling them, yeah, you have to take your diplomats back. We never saw such kind of we never thought that our country would do such things 10 years back or 15 years back. It is impossible to even think. So would you agree, Abhishek Mishra ji,
that as far as Modi's India is concerned, it is forward-looking, it is modern, it's powerful, it's confident, it's assertive, and what would you say is the India that Congress wants to project? Abhishek Mishra ji, the difference. See, the Congress party, the India it wants to project is an India in which only Gandhi family possesses all wisdom, all power, all glory, all kind of divine attributes. So the Congress version of India is a Gandhi family's rule over India as a very benevolent rulers. As if Indians are nothing. If you remember, during Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru's time, the positioning was that Indians are basically weak and very mostly illiterate, etc. It is the Jawaharlal and Indira Gandhi who are the ones who are the shining lights and the only light in this country. Okay, now that is the Congress version. It's a Gandhi family-led version. And the BJP version for India is that India should rightfully regain its glory, its civilizational glory, its glory of its ancient past, literature, knowledge, its military prowess, its historical significance, its civilizational value, its spiritual value. So what BJP wants to do is just put India back at the level of a world teacher as a world leader. Congress wants to put Gandhi family as India's leader. The difference between the two is we want to make Bharat as a world leader. Congress's view is make Gandhi family the leader of India. No, but here, Abhishek Mishra ji, the other thing also is as far as the Congress is concerned. चलिए ठीक है, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है I'm biased. Because सीधी सादी बात है, देखिए साहब, जब मोदी जी बात करते हैं तो बड़ी उम्मीद की बात करते हैं. मोदी जी बात करते हैं तो एक बड़े सुनहरे भविष्य की बात करते हैं. जब हम लोग कांग्रेस के नेताओं को सुनते हैं तो वही बात होती है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो it's almost like you're seeing the same speech being repeated now since 1947. I mean, it's like watching a black and white film. It's like watching दो बीघा जमीन, पाथर पांचली, all over again. Each time the Congress speaks. ये कब चेंज हो गया यार? ये मतलब मेरी समझ के बाहर है. अरे भाई कोई होप की बात करो ना, होपफुल बात करो. ये क्या मतलब हुआ? अभिषेक मिश्रा साहब चेंज नहीं करेगी. कांग्रेस पार्टी का सोशलिस्ट विजन ही है कि पूरा देश गरीब और गांधी परिवार जो है वो देश के महाराज. तो कांग्रेस का जो सोशलिस्ट और फ्यूडलिस्टिक विजन है उसमें गरीबी, भुखमरी, परेशानी ये सब रहेगा, क्योंकि हमेशा ये प्रस्तुत करना है कि भारत की जनता असमर्थ है, भारत की जनता के पास कुछ है नहीं, तो नेतृत्व देगा. ये कांग्रेस का फ्लॉड सोशलिस्ट फ्यूडलिस्टिक वर्जन है. इसलिए कांग्रेस हमेशा खुद ही राज करती रही 1947 से, समस्याएं हल नहीं कर पाई, समस्या उल्टा पैदा कर दिया, और अभी भी वो उन समस्याओं का गाना गा रहे हैं क्योंकि उनको और कुछ आता नहीं है. जवाहरलाल के टाइम हो या राहुल गांधी का टाइम हो, बातें वही थी. अरे गरीब, तुमको गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो. जवाहरलाल भी यही कहते कहते अपना चले गए. राहुल गांधी भी आज 5 पीढ़ी हो गई, वो भी यही कह रहे हैं, आप गरीब हो, आप गरीब हो. अरे भाई, आपने कांग्रेस से खुद राज किया, क्या कर दिया? 50 साल तो आपका ही राज था. क्यों नहीं गरीबी मिटाई? क्यों गांधी परिवार का महिमा मंडन होता रहा? क्यों गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति भारत की घूमती रही? कभी मोतीलाल, कभी जवाहरलाल, कभी इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, ये सोनिया गांधी. तो ये क्यों करते रहे? तो कांग्रेस जब तक रहेगी वो यही कहती रहेगी, आप गरीब हो, आप गरीब हो, गरीब हो. मैं आपका नेता हूँ, मैं जवाहरलाल हूँ, मैं इंदिरा हूँ, मैं राजीव हूँ, मैं संजय हूँ, मैं राहुल हूँ, मैं सोनिया हूँ, मैं आपका नेता हूँ, आप गरीब हो. ये ही कांग्रेस की चाल है. अगर ऐसी बात है अभिषेक मिश्रा जी, जो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, बाकी सबको भी दिख रहा है, भारत आगे बढ़ेगा और सभी भारतवासी आगे बढ़ेंगे. लेकिन आप ये बताएं कि अभी जो 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हो रहा है, तो उसमें ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है? कई जगह पर, ज्यादातर जगह पर ये आ रहा है कि कांग्रेस आगे है, कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल होगी जीतना. सर बताएं. देखिए, आगे पीछे तो वो तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा. कैंपेन को तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, जनता का हमें समर्थन प्राप्त है, और हमारे पास जो है सबसे कैपेबल और पॉपुलर लीडर है मोदी जी, और सबसे इंडिया में जो मोस्ट एस्ट्यूट पॉलिटिशियन अमित शाह जी हैं. तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि भाजपा की सरकार बनेगी. और ये जो हवाएं कांग्रेस फैला रही है, ये तो असत्य की हवा है. कांग्रेस पार्टी देखिए पुरानी पार्टी है, वो लोग पे छलावा जानती है. तो आप इसे पत्रकार के माइंड में छल कर दिया कि हम जीत रहे हैं. ये कांग्रेस पार्टी की महारत, इतने साल से राज किया है, वो जानते हैं झूठ फैलाना. उनके लोग बैठे हैं ना हर जगह झूठ फैलाने के. तो मिस्टर मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, दे आर नॉट स्केयर्ड टू टॉक अबाउट. कल जैसे कृष्ण जन्मभूमि के बात किए, राम मंदिर के बात करना, अमित शाह, जेपी नड्डा, एंड एवरी प्लेटफॉर्म अक्रॉस ऑल द 4 states with the campaign, they have been telling you not only that. 22 January
Jan 2024, अमित शाह जी आगे जाकर मुहूर्त भी बताते हैं। मुहूर्त सुनिए, आप लोग नोट कीजिए, 12:22 को रामलला प्राण प्रतिष्ठान। They are not afraid. Their BJP is not afraid to talk about these plans, about the temples, Ram Mandir, Krishna Janmabhoomi. और आगे जाके ये भी लोगों को कहते हैं कि मोदी जी ने ही इसका भूमि पूजन किया था 5th of August 2019. Now this is the language that is being used. Now never before. आगे जाके अमित शाह जी कह रहे हैं कि for 70 years the Congress has been opposing the plans of Ram Mandir. Now how much? अभी कांग्रेस को पूछेंगे, वो बोलेंगे कि बीजेपी ने थोड़ी किया, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको निभा रहे। हाउ डू यू सी इट? अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने अच्छा बात बोला था कि भारत में अगर हम राम मंदिर और कृष्ण मंदिर की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? बाबर की करेंगे, औरंगजेब की करेंगे? तो ये तो एक व्यर्थ का डिबेट है। भारत में राम मंदिर और कृष्ण मंदिर की बात होगी ही, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। दूसरी जो बात है कि सुप्रीम कोर्ट, तो यस वी रिस्पेक्ट द वर्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, परंतु ये भी तो सच है कि मूवमेंट और पूरा देश में कॉन्शियसनेस वो तो भाजपा और संघ परिवार के संस्थाओं ने जगाया। तो इनको भी तो भाजपा, हमारी पार्टी को और संघ के परिवार के संगठन है, उनको तो श्रेय तो मिलेगा ही। कॉन्शियसनेस तो जगाया, देश को तो इस बारे में पूरा मूवमेंट क्रिएट किया और कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया पक्ष में। तो दोनों को, कोर्ट को भी श्रेय है और संघ और भाजपा को भी श्रेय है। मिश्रा जी, कांग्रेस का कहना द कैंपेन इज ऑन। बोले देश में सबसे कम कीमत में अगर गैस कहीं मिलता हो, सिलेंडर मिलता है, वो तो राजस्थान में मिल रहा है। राजस्थान इज प्रोवाइडिंग द चीपेस्ट गैस सिलेंडर्स फॉर इट्स पीपल इन राजस्थान। एंड जो सजा के रखा है ओल्ड पेंशन स्कीम, वुमन हेड 10,000 रुपया, गोबर 2 रुपए में खरीद रहे हैं, स्टूडेंट्स लैपटॉप, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, और अभी जो चिरंजीवी योजना इज एब्सोल्यूट सक्सेस बिकॉज ऑफ द 50 लाख का गरीबों को इंश्योरेंस। नाउ उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का कहना है, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वी आर गिविंग यू दिस इफ नरेंद्र मोदी जी बीजेपी कम हियर, ये सब से आप वंचित रहोगे बिकॉज बीजेपी इज अगेंस्ट गरीब कल्याण योजना है। विश्वा जी? देखिए, राजस्थान में आप एडवोकेट हैं। बिल्कुल। राजस्थान में 2 हफ्ते पहले एक 4 साल की छोटी बच्ची का रेप किया, किसने किया पता है आपको? पुलिस सब इंस्पेक्टर जी। ये है राजस्थान की सच्चाई। उसके आगे आप कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाएं, स्टॉप इट। 4 साल की बच्ची का रेप पुलिस का सब इंस्पेक्टर करता है, ये है राजस्थान। मैटर क्लोज्ड। तो आपके मुताबिक द सेम पैटर्न विल बी रिपीटेड इन राजस्थान एज हैज बीन देयर फॉर द लास्ट 10 or 15 years where governments have replaced each other. Congress government, BJP, Congress, that way. Rajasthan government in which a policeman feels empowered to rape 4-year-old girls, that government of Gahlot will go. That's justice. So in effect you think you are winning Rajasthan? Yes. And what about Madhya Pradesh, sir? Madhya Pradesh, we are already in power, we will retain power. So you will retain power? Yes. And in Chhattisgarh, sir? Chhattisgarh, we have done a very good campaign, spirited campaign. It's an equal fight. People are looking with hope towards us. And Telangana, you seem to be trailing in Telangana. Telangana, we are doing our best. We are doing our best. We are doing our best as a political party to win people's confidence. Is there a possibility that, say, after the elections, there may be a coalition between KCR's BRS and the BJP? Is there a possibility? No, Prime Minister said that KCR is very भ्रष्टाचार में लिप्त है, corrupt man. There is no hope. BJP on its own is a capable party, strong party. लेकिन यहाँ तो बातचीत चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बिना, जो बीजेपी की अंदरूनी बातचीत चल रही है कि बीजेपी के बिना तेलंगाना में सरकार नहीं बनती है, ऐसी बातचीत चल रही है। We are fighting to form government on our own. Right now, alliances are not even in consideration. You have been premature. सर, आज की तारीख में सिर्फ एक एमएलए है आपका तेलंगाना में। तो त्रिपुरा में 3 था और फिर हमारी सरकार बन गई।
जी। और वेस्ट बंगाल में आपके 3 या 4 थे और आज की तारीख में शायद 84 के करीब हैं, 84 या 90 के करीब हैं। जीते थे, 70 रह गए, 7 ले गई ममता जी जी, but it's so you will do well in Telangana. That's what you say. हैदराबाद के जो म्युनिसिपल पोल्स में we had almost won it, so you can understand. Yes, you did. But that was a municipal election, focused only on one city. Suppose that the lotus symbol is has a lot of appeal to the people. Wonderful. अमृत काल अभिषेक मिश्रा जी, द कांग्रेस सेज अगर अमृत काल है, जो मोदी साहब कह रहे हैं कि ग्लोबल रिकॉग्निशन, द ग्रेटेस्ट एजेंसीज, ग्लोबल एजेंसीज, IMF, मूडीज, एवरीबॉडी, मॉर्गन स्टैनली टेलिंग 6.5 to 6.7% ग्रोथ, तो कांग्रेस पूछ रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पूछ रहे कि परम मित्र क्यों छोड़ के जा रहे हैं, परम मित्र गोल्डन पासपोर्ट लेके क्यों जा रहे हैं, विनोद अडानी, पंकज ओसवाल, सुरेंद्र हीरानंदानी, they say if it is Amrit Kal, why are the businessmen leaving? Do you want to reply to that? Yes, Vasudev Kutumbakam. Indian culture, world is our family. Our members will go everywhere in the world. But actually speaking, very frankly speaking, that's a very unfair criticism, very frankly. That's my opinion anyway. I know Pradeep ji will disagree with me, or perhaps he won't, I don't know. Because even in the United States, as I said yesterday, you have multi-billionaires who are citizens of various tax havens. You know, you become a citizen of Liechtenstein, you become a citizen of Luxembourg, you become a citizen of Monaco and stuff like that, only because of tax purposes. But your business continues in the USA as well as elsewhere. That doesn't mean that the US economy is collapsing. So if Indians have become powerful enough actually to be able to acquire golden passports in the European Union, I think that's a good thing. It is not as if they are winding up their businesses and going abroad. Mr. Abhishek Mishra. मैंने जवाब दे दिया ना एक शब्द में, वसुदेव कुटुंबकम. World is our family. Yeah, I thought you would say the world is our oyster, and we're going to eat it. That's wonderful. Family. Today, I love the terminology. You know, family. That's it. Good. You know, Uddhav Thackeray ji is making ways to come back and join, have an alliance with the BJP. This is some kind of things that have been floating out in the political circles. You have any information कि उद्धव ठाकरे जी सचमुच यही चाहता है कि probably wants to patch up with the BJP before the elections? How do you see that, Mishra ji? Have you got some whispers coming on? I don't know anything. Only on this matter, Bhawan Kule ji, our state president, or Devendra Fadnavis ji, leader of our party in Maharashtra. Only these two can comment. I cannot comment. I think Mr. Rane Jr. said that. yes. But then he says a lot of things. You can't really control him. That's fine. And the other thing also is, by January, I think, in 2024, India will genuinely become a $4 trillion economy. The GDP will, I think, possibly cross $4 trillion at that time. We are very close. I think the news of the Indian economy being a 4 trillion economy was somewhat premature. It will just take another couple of months. So, which means by the end of 2024 or beginning of 2025, India would have overtaken Germany as the 4th largest economy in the world. Isn't that wonderful? That's wonderful news, right? Abhishek Mishra ji? See, India as a country of 1.4 billion, and because China also 1.4 billion. So if China is today 18 to 20 trillion dollars, we should catch up very fast. So reaching 5 is important, reaching 10 is important, because we and China are the same population, and they are 18 trillion dollars, and we are not yet 4. So imagine the gap, and that gap then that gap translates into military, economic, diplomatic, all kind of strengths. So that's why we have to catch up. For us, it's not a question of, it's welcome. It is our necessity. It is a strategic necessity. Otherwise, same population, if one population of the same 1.4 billion country is 18 trillion and same 1.4 is 3 trillion, it is we have to catch up fast to China. Right. At the moment, we are at about 1.42 billion people, which is fantastic. 142 करोड़ की आज की तारीख में हिंदुस्तान की आबादी है. लेकिन सर यहाँ पर जो ये सवाल मैंने कल भी पूछा था, आज दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे. I would like your take on this. When will the per capita income go up? The genuine income of people, when will that go up? We know India will become a $5 trillion economy, we'll become a $10 trillion economy, we'll even become a $25 trillion economy. So when will our people start getting the benefits
of this huge growth? Abhishek Mishra ji. The per capita income, I think there's a problem in leaving overemphasis on that, because see, when I was doing my MBA in London, so even if you morning breakfast would take a croissant, it would cost £3. Okay, so that is in Indian rupees almost 325 rupees. Okay, for one small croissant. Okay. An Indian man in Mumbai can have a breakfast, full breakfast of vada pav, idli, sambar, what not, in 40-50 rupees. So the Britisher, if you tell him that I have only 50 rupees to spend in the morning, he'll say, oh, you are so poor, because I have to spend £3, 325 rupees in your. But for an Indian man, 50 rupees is enough for his breakfast. A normal British breakfast costs around £8. Only croissant is £3. And other things, if you include, it costs £8 to £10. So a British breakfast normal in a university when I was studying would cost me 1,000 rupees Indian on my credit card. But in India, in 1,000 rupees, 5 friends, 10 friends can come and eat together. Lunch. Their breakfast would cost. So problem is PPP, this per capita income. Though India is shown as a low per capita income country, but in that low income, he is able to live a normal life, which the other European countries, high income, can only see. I'll be honest with you, we live in some kind of delusional world. In UK today, yes, they have 6 crore population, around 50 lakh are homeless. In London, I'm talking UK, they don't have food. They're shoplifting. I was shocked. Shoplifting there is an organized crime. Yes. And people were saying that we cannot open our energy heaters. We don't have food to eat. So they may show higher per capita income, but because the expense of everything is so high, even that income makes them poor. So this is a myth, this per capita income thing. An Indian man can survive on 300 rupees per day, whole day. Perhaps less. Needs at least 30 pounds, which is 3,000 rupees. So there's a even if they're 10 times ahead in per capita income, the standard of life is equal to us. Yeah. Or lower than us sometimes. Lower than us sometimes. There is a major food crisis in the UK at the moment, on that there is no doubt. And there's a major heating crisis in the UK. People are not able to pay their energy bills. It's like terrible, absolutely. So would you say that purchasing power parity would be a far better index to look at? Yes, I agree. So in terms of purchasing power parity, India stands at number 3 already. Yes. And very shortly going to number 2. Yes, that is the right indicator. So why don't we talk more about that? Because why do we stick to the traditional economics of talking about GDP, per capita income and so on and so forth, which is what most of these left liberal economists, they invariably come up with this great theory of how India is still a third world country and needs to go around with a begging bowl. Abhishek Mishra ji. But they are stuck in the textbooks, not in practical example. I saw, whenever I traveled abroad, I saw with my own eyes. Yes. I saw the British conditions were worse than us in most of the places. The people are very poor. If our Indian students stop going abroad to study, 25% of the economy will further collapse. There is only $1 trillion economy. Absolutely true. You want to talk about the Panch Pran Sankalp, Narendra Modi ji, Amrut Kal. He says this Panch Pran Sankalp is going to uplift the country. जो विकसित भारत के सपने, गुलामी के सोच से दूर, विरासत पर गर्व करना. Now how do you see equate this with current Modi ji का जो worldwide upliftment of the country? Modi ji has already uplifted the country. It's not in the future, it's in the present. Already the country is uplifted. We are already a respected global power. It has happened. Modi ji has succeeded. And in terms of the manner in which the economy has recovered after the COVID lockdown, that has been fantastic, by the way. I hope people remember that when they vote, as the voting is going on in the 5 states. We'll know, of course, very, very shortly. Today, of course, is just the 24th of November. By the 3rd of December, we'll have the results. Abhishek Mishra ji, I hope you'll be here to analyze the results with us. Okay. That'll be wonderful.
and we will talk about who's winning and who is not. Really and truly wonderful. Thank you very much, Abhishek Mishra ji, for joining us. Great pleasure as always. और एक बार फिर आपको तुलसी विवाह की बहुत 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 शुभकामनाएं. Thank you. प्रणाम, प्रणाम. Mr. Abhishek Mishra, I think he got bored towards the end, isn't he? He seemed to be bored. Anyway. Probably had a heavy day today and Maybe. He always has a very heavy social day, every day. And at the moment with us from the Congress to present a totally different view, I think our old friend, our very old friend, Mr. Farooqi, right now with us. Farooqi Saab, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार. हाउ आर यू सर? Absolutely fine, sir. Thank you very much. नमस्कार सर. सर इस वक्त कहाँ हैं आप? बड़ी खूबसूरत जगह पर आप दिख रहे हैं. ये क्या जगह है सर, बताएं. मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था और आप फॉरेन पॉलिसीज और उसकी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, स्पेशली लंदन की. तो मैं लंदन बैठा हूँ. लंदन में बैठे हैं सर. वाह, वंडरफुल. तो लंदन में सर असल में खाने की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भाग रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? पहले के मुकाबले में कुछ ना कुछ तो फर्क आया है इनका जी. क्योंकि ये जो रशिया और जो वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन की, और यूक्रेन इनका सबसे बड़ा सप्लाई चेन था फूड, स्पेशली फूड के मामले में जी. तो उससे इनको आया है. ओवरऑल इनकी इकोनॉमी खराब हुई है, लेकिन दे विल बाउंस बैक, यू नो दैट. Yes, they are very hard-working people. They will bounce back on that. There is no doubt. इनकी अब हार्ड वर्किंग से ज़्यादा इनकी जो पॉलिसीज थी, जिसमें इन्होंने एशियंस को जोड़ लिया है, जो हम इंडियंस आके इनको मेहनत करके इनकी इकोनॉमी को ग्रोथ देते हैं, इट इज आल्सो बेनिफिटिंग टू देम. Absolutely. As they say, अगर आज हिंदुस्तानी वहाँ से गुड मॉर्निंग करके वापस हिंदुस्तान आ जाएं तो ब्रिटेन तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा. मतलब बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. जी, दुरुस्त बात है सर. आपसे ही पूछना था. और एट द मोमेंट विद अस मिस्टर आसिफ फारूकी, ही इज फ्रॉम राइट नाउ, ही इज विद अस फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम लंदन. सर लंदन के कौन से इलाके से हैं वो भी बता दें कि विच एरिया ऑफ लंदन आर यू इन सर राइट नाउ? मैं सर बिल्कुल विक्टोरिया के करीब पिमलिको करके एक एरिया है. पिमलिको, यस, वंडरफुल. सैयदना साहब का मकान है, बोरा जमात के जो हेड है जी. एंड ही इज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी फॉर अ वीक कि आप वहाँ रह सकते हैं फैमिली के साथ. माशाल्लाह, क्या बात है सर. तो सैयदना साहब के घर में रह रहे हैं, हिज होलीनेस के घर में आप रह रहे हैं. क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल. यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड सर, यू आर ब्लेस्ड. सर ये बताएं. जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे सर आप, प्लीज गो अहेड. आई एम रियली ब्लेस्ड. वंडरफुल. सर आप ये बताएं, अभी जो ओपिनियन पोल्स आ रही हैं, थोड़ी बहुत, खैर एग्जिट पोल्स तो अभी आ नहीं सकती हैं. एग्जिट पोल्स तो 3 नवंबर के पहले ही आएंगी, 1 नवंबर के आसपास आएंगी. लेकिन अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आ रही हैं उसमें तो दिख रहा है साहब कि कांग्रेस बड़ा अच्छा कर रही है. जो 5 के 5 स्टेट चुनाव के लिए जा रहे हैं उसमें तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत साहब, आपके बघेल साहब, और वो रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना में. अरे तेलंगाना में मतलब गजब है साहब. ये क्या हो गया है, ये करिश्मा कैसे हो गया सर, ये इसके बारे में जरा बताएं प्लीज. सर देखिए, ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया, सिवाय इसके कि पब्लिक को इनकी जो झूठी पॉलिसीज थी, जो झूठे वादे थे, जो झूठी थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुल के उनके जहन में बिल्कुल क्लियर आ गई है. इन्होंने कोई पॉलिसी कोई अच्छी बनाई नहीं थी. इन्होंने पर्सनल अटैक करके चीज़ों को ख़राब दिखाया था कि भाई वो गांधी फैमिली ऐसी है और इनके अब्बा कौन है और ये कपड़े क्या है और इन्होंने देश को बर्बाद किया 70 साल. इस किस्म की बातें इन्होंने की थी, जो कि पब्लिक को खुद एहसास हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी कोई पॉलिसी तो है नहीं, ये नफरत वाली पॉलिसी से ये गेम कर रहे हैं. और इनको अगर इस इलेक्शन में नहीं दूर किया तो ये तो हमारी इकोनॉमी और हमारे मामलात को और ख़राब कर देंगे. इसके लिए इसका फ़ायदा कांग्रेस को डायरेक्ट पहुंच रहा है. जबरदस्त. प्रदीप जी. फारूकी साहब, मोदी साहब कहता कि देखो ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ आवर इकोनॉमी. Mr. Modi says, look at the global recognition of our economy. सब जितने भी global rating agencies है, जो Standard of Poor या Moody's है
मॉर्गन स्टैनली है, IMF है, दे ऑल रेटिंग इंडिया 6.5 के आसपास एवरेज ग्रोथ के ऊपर, GDP ग्रोथ, दैट्स व्हाट दे से। नाउ कांग्रेस इज स्टिल, और उन्होंने कहा कि MSMEs देखो मैंने कितना स्ट्रेंथन किया है। मोदी साहब का कहना है MSMEs इतना स्ट्रांग बना दे कि 15 करोड़ जॉब्स मैंने क्रिएट किया। मिस्टर मोदी, 15 करोड़ जॉब्स, आउट ऑफ 3.5 करोड़ इज वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो मोदी साहब का क्लेम यह है, बट राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आज भी यही भाषण है, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और जुमले से आजादी। हाउ यू गोइंग टू इक्वेट दिस, आसिफ फारूकी साहब? You couldn't, आप सुने नहीं? आसिफ फारूकी साहब, आपको आवाज आ रही है? आसिफ फारूकी साहब जी, मुझको आवाज आ रही है सर जी। आप प्रश्न पूछा, सुने कि वापस पूछूं मैं? नहीं, फिर से पूछ लें तो। अच्छा, मोदी साहब का कहना, नरेंद्र मोदी जी का कहना है, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ऑल द ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड इंडिया को एकदम 6.5 के एवरेज पे GDP ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो मूडीज हो, IMF हो, मॉर्गन स्टैनली हो। और मैंने, मोदी साहब का कहना है कि मैंने इंडिया में MSMEs को इतना मजबूत कर दिया कि 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, जिसमें 3.5 के आसपास करोड़ वुमेन एम्प्लॉयमेंट है। बट कांग्रेस के जितने लीडर्स है, उनका कहना है कि राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनका कहना है कि फिर वही स्लोगन, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और जुमले से आजादी। फारूकी साहब, इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो? सर देखिए, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है जिस हम रोजाना सुनते रहते हैं, और काफी लोगों ने इसकी तारीफ की है कि इंडिया इसमें काफी आगे रहेगा। ये मोदी जी की कोई पॉलिसी से नहीं है सर, ये हमारी पॉपुलेशन जो है वो ऐड करने जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। जो पॉजिटिविटी है, जो जनरल काम है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो 70 सालों से कांग्रेस ने मेहनत की थी, अब उसका फल जो है ये पॉपुलेशन होने की वजह से, हमारे जो लेबर सस्ते होने की वजह से हम वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत सी इकोनॉमी को ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छी बना सकते हैं, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट हमारी कंट्री को मिलेगा। और मैं यहाँ आके जब मैंने देखा तो मुझको उस बात का एहसास हुआ कि ऐसे बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ये इकोनॉमी है और ये डेटा है, लेकिन सर ये जो चीप लेबर जो हमारे वहाँ के हिंदुस्तानी हैं, जो रातों दिन मेहनत करते हैं, दिन में 24 घंटे में 12 घंटे मेहनत करते हैं, और जो उसका आउटपुट आता है न सिर्फ उनको डायरेक्ट बेनिफिट देता है बल्कि कंट्री को उसका बेनिफिट होता है। और हम इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पे उसकी इकोनॉमी के अंदर मदद कर पाते हैं, जिसका आप बोलबाला सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान इकोनॉमी में आगे जा रहा है। और ये जो 15 करोड़ और 20 करोड़ की बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई जॉब क्रिएट नहीं की है सर, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं लेके आई है सर कि जिसकी वजह से पब्लिक उसको काम कर सके। ये जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग अपने काम को बढ़ा रहे हैं, उसका बेनिफिट कंट्री को और नेशनल इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल इकोनॉमी को पहुंच रहा है। और हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे तरीके से कॉम्पीट कर पा रहे हैं चीप लेबर होने की वजह से। और अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर ये अच्छी कर दे तो हम और भी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कर पाएंगे अपनी कंट्री की और इंटरनेशनल लेवल की। माशाल्लाह। एट द मोमेंट आसिफ फारूकी साहब जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। माशाल्लाह आसिफ फारूकी साहब, अभी भी आपको उम्मीद है कि ये सरकार जो है वो अपनी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी करेगी, नीतियाँ बहुत अच्छी करेगी? लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं, मुझको ये आखिर में ये उखड़ गए हैं और इनके लोग बाग, अभी जब मैं कुछ चंद लोगों से बात कर रहा था, अच्छे लोगों से बात कर रहा था, हमारे मित्र हैं, लेकिन वो उसी थॉट प्रोसेस के हैं, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी देखिए जनवरी फरवरी में हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन होगा तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा। तो ये लोग, मुझको ऐसा लगा कि इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनकी समझ सिर्फ वही मंदिर मस्जिद और डिवीज़न के ऊपर ही कायम है। इनके अंदर कोई पॉलिसी और कोई स्कीम्स नहीं है जिसको लेके ये काम आगे कर पाएंगे। इसलिए उनको इस बात का खुद को एहसास है
कि इकोनॉमिकली ये लोग बहुत ही बैकवर्ड होते चले जाएंगे अगर इस गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। लेकिन आसिफ फारूकी साहब, आपको लगता है, क्योंकि आप इतने सालों तक पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी रहे हैं, अभी भी आप बड़ी मतलब आपकी जो सोच है बहुत इंसाइसिव है पॉलिटिक्स को लेकर के। अनदर वन बाय द वे, आसिफ फारूकी साहब ऑफ द कांग्रेस जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन। सर, राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होगी, उसके बाद क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिकल गुडविल है उसमें कुछ इजाफा होगा? आसिफ फारूकी साहब। फारूकी साहब, क्या राम मंदिर में जो जनवरी 22 को 2024 को जो सेरेमनी होने वाली है, उसके बाद राम मंदिर के किवाड़ खोल दिए जाएंगे, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा होगा? सर, इमोशनल लेवल पे मैं भी राम जी के साथ में हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ कि रिलीजियस लेवल पे बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन जो लोग पॉलिसीज और काम और इकोनॉमी के लिए सोचते हैं, जिनको ये जहन है कि ये सब सारी चीज़ें जो है पर्सनल है, अगर रिलीजन की बात अगर है, लेकिन इकोनॉमी सबके लिए है, तो वो उनको डेफिनेटली सेटबैक होगा कि ये गवर्नमेंट सिर्फ रिलीजन्स के ऊपर काम करती है, नफरत और लोगों के दिलों में दरार पैदा करके वोट हासिल करना चाहती है, और कोई इनकी पॉलिसीज बना के हमारे मुल्क को और ग्लोबल इकोनॉमी को कोई फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहती है, जिसका नुकसान जो है आम जनता को होगा। और जो जनता आज गरीब है, कल उससे ज़्यादा गरीब हो जाएगी। चंद लोग ज़रूर अमीर हो जाएंगे, कुछ राम मंदिर के नाम पे, कुछ वहाँ पे होटल शोटल बड़े बना के, कुछ वहाँ पे बड़े मेले लगा के, लेकिन ओवरऑल उसका नुकसान पहुँचेगा कंट्री को और ग्लोबल इकोनॉमी को। आसिफ जी, बट यहाँ तक रुकते नहीं, इट डजंट स्टॉप देयर, इट डजंट स्टॉप देयर, बिकॉज आज के तारीख में हर प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, एवरी जो 5 स्टेट इलेक्शन है, हर मंच पर यही बोल रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का संकल्प 22 जो डेट बजाज साहब ने बोला 22 जैन, और वक्त भी, मुहूर्त भी बोलते हैं 12:22 को, और कांग्रेस ने हमेशा 550 साल के बाद राम मंदिर का फिर पुनर्निर्माण हो रहा है, और कांग्रेस ने 70 साल में विरोध किया राम मंदिर का। दैट इज व्हाट वी आर हाईलाइटिंग, और बार बार हर मंच पे ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इनका भूमि पूजन भी मोदी जी ने किया था 5th of August 2019। नाउ द एंटायर एजेंडा इज दैट कांग्रेस हैज नेवर और वर्कड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ राम मंदिर। तो आपको नहीं लगता पॉलिटिकली बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा? 2024 इलेक्शन जनवरी में ये है और मई में इलेक्शन है। आसिफ फारूकी साहब। नहीं सर, अगर आप देखें तो पहली बात तो लेट मी करेक्ट यू, राम मंदिर का कांग्रेस ने कभी भी इनकार नहीं किया, अपोज नहीं किया। 70 साल हुए या आप 100 सालों से जोड़ ले जो उसके केसेस चले आ रहे थे, वो एक जमीन का मामला था, और उसको कांग्रेस ने हमेशा कोर्ट के अंदर जो भी फैसला हो, और खुद मुसलमानों ने भी यही यकीन किया था कि जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि इन लोगों ने जो फैसले किए हैं वो कोर्ट के फैसले से ज़रूर किया है, लेकिन वो फैसला जो है वो एक आस्था के ऊपर हुआ है, न कि वो जजमेंट जो कोर्ट के अंदर मामलात होते हैं, जो कानून के अंदर जो बातें होती है ज़मीन की, उस तरीके से हुआ है, जिसमें कांग्रेस अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा है, कल भी रखा है और आइंदा भी दूर रखेगी, क्योंकि हमारी कोर्ट किसी की इमोशंस और आस्था पे नहीं चलती है। और बीजेपी ने आके उसके ऊपर फैसला किया, हमने वेलकम किया, क्योंकि एज अ मुस्लिम होने के नाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे मुसलमानों ने ओवर द पीरियड ये देख लिया था कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें कत्ल, खून रेजी
मारपीट होगी, जो कि पिछले एक दहाई से ये शुरू हो गया था कि ये मारपीट के हर तरीके से इसको लेना चाहते, तो हमने उसको एक तरीके से अपने जहन में ये बिठा लिया था कि हम कोई भी मारपीट से नहीं काम करेंगे राम मंदिर के लिए या बाबरी मस्जिद के लिए, और उसमें हम कायम रहे। और उसको अगर ये अपना सक्सेस जोड़ते हैं तो इनको मुबारक हो, लेकिन ये अपने गरीबान में अगर झांक के देखें तो ये इनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि पब्लिक ने माना है उस बात को, इनकी आस्था को, और हमने वेलकम किया है अपने हिंदू भाइयों के लिए कि हम मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों के भी दिल में दर्द होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने इसको तोड़ मड़ोड़ के राम मंदिर के केस को आगे रखा है। सर आप खुद उसको देख लीजिए। जी आसिफ फारूकी जी, आर्टिकल 370 के बारे में जो बजाज साहब बार बार कहते हैं कि पहले एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थी शीला रशीद आज सबसे प्रो मोदी बात करने वाले कि अगर किसी ने कश्मीर में थोड़ा बिजनेस और अच्छा वातावरण बना दिया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। दैट इज द चेंजिंग टोन ऑफ शीला रशीद। शी हैज बीन एन आर्डेंट क्रिटिक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अर्लियर, बट असल में यह भी है कि फुटफॉल्स कश्मीर में सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा। और क्या इंडिया और प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड दैट वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान, वी विल नॉट टॉक टू हुर्रियत, वी विल नॉट टॉक टू जमात एंड वी विल ओनली टॉक टू द पीपल ऑफ कश्मीर, क्या ये पॉलिसीज चेंज लाया है कश्मीर में? कश्मीर में बिजनेस फुटफॉल्स ज्यादा हुआ है, टूरिज्म फुटफॉल्स हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस है, तो एंड आर्टिकल 370 इज गोइंग टू बी अ शोकेस प्रोजेक्ट ऑफ द बीजेपी इन द कमिंग इलेक्शन 2024 में। तो आप इसको कैसे देखते हो आसिफ फारूकी साहब? सर 370 इन्होंने किया और उसके बाद के हालात आप देख रहे हैं। 3 रोज पहले हमारे एक जवान की डेथ हुई है और ये कंट्रोल नहीं, आज और कल के बीच में 5 की हुई है जी, 5। तो आपके पास उसका पूरा ओपन रिजल्ट है सर जी कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और नंबर 370 हो या कोई भी करने का, हमको वहां पे एक अच्छा वातावरण चाहिए होना। मेरे ख्याल से आप कंपेयर करें तो कांग्रेस के ज़माने में ये ज़्यादा अच्छा था वहाँ का हालात बनिस्बत आज के। तो एक आम जनता के लिए तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है सर। और ये जो भी क्लेम करते हैं ये झूठा क्लेम है इनका। आप खुद देख सकते हैं कि कितने जवान आज भी मारे जा रहे हैं वहाँ। सर वो रजौरी के आसपास मिलिटेंसी वापस आ गई है। कल हमारे 2 अफसर, 1 जेसीओ और 2 जवान मारे गए। बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक जी हुआ है। and I think that's I don't know, and the other thing also is I don't know whether Mr. Farooqi knows about this or not. I'm still wondering, Pradeep ji, where are the bulletproof vests? All the people serving in Jammu and Kashmir were supposed to get those Kevlar bulletproof vests and all that. And order high-tech gadgets then weapons that. अरे वो 1.5 लाख Kevlar bulletproof vest का क्या हुआ? मतलब ये तो मरे जा रहे हैं बेचारे। मतलब this is like terrible. 2 captains, 1 major is also injured. I hope he survives. Yes. I mean this is like, and 1 JCO. This is absolutely terrible what is happening and nobody. और सबसे बड़ी बात क्या है आसिफ फारूकी साहब, यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता आज की तारीख में। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जिस भी मंत्री से आप बात करें, जो भी बात करें, तो आपको स्पष्टीकरण मिल जाता था। यू वुड गेट एन एक्सप्लेनेशन कि यार ये हुआ है और इसकी वजह से नहीं हुआ है। अभी आज की तारीख में कोई बात नहीं करता है। आसिफ फारूकी साहब ये क्या है, ये जरा बताएं। सर देखिए ये अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो पड़ोसी मुल्क के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, न सिर्फ कि हमारा फ़ायदा हो बल्कि हम कंट्री लेवल पे उसके मामलात को दुरुस्त करके एक जनता को अच्छा एहसास दिलाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ किया था। उसके बाद ये खुद चले गए, नवाज शरीफ से मुलाकात की इन्होंने और अब उस बात को अब मित्रता में जोड़ने लगे। अपने मुंह की खाई सर, हमारे जवान को मरवा दिया इन्होंने और एक आंसू नहीं रोए और कभी भी अपने आप को ये ब्लेम नहीं किया कि ये किस तरीके से अननेसेसरी एक उनकी दावत खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, एक हमारे जवानों के खून के ऊपर उन्होंने होली खेल ली उसके लिए और अपनी बिरयानी खाई। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है सर। कांग्रेस ने इस किस्म का कभी भी कोई काम नहीं किया है सर। हाँ, कांग्रेस हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहती है और आगे भी रखेगी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी की जान, किसी की खून के ऊपर सर। हम उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और ये पॉलिसीज़ जो है कांग्रेस की आपको उनके
जब सत्ता में थी तो वो नजर आती रही होगी, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो, चाहे इंदिरा जी की रही हो, और स्टार्टिंग विद हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के ज़माने की। आसिफ फारूकी साहब, तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये लोग अपने जी दिखाएंगे बोलिए। सर, क्योंकि ये इनको पब्लिक ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ये सिर्फ बातों से काम करके अपना वोट लेना चाहते हैं। इनका ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, इकोनॉमी की कोई पॉलिसी नहीं है, और किसी अवाम के लिए कोई नौकरी या कोई काम नहीं है। ये दो चार जो इनके बिजनेस टाइकून्स हैं उनके लिए ये काम करती है ये गवर्नमेंट, और पैसे जमा करके कुछ लोगों को वो आगे बढ़ा के अपना वोट जमा करके जीतना चाहती है। इसलिए जनता इनको समझ चुकी है, और कांग्रेस और हमारे साथ जो दूसरी और पार्टियां हैं उनका बड़ा अच्छा इसमें मामला हो गया है कि ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। आसिफ फारूकी साहब, इस वक्त आप लंदन में हैं, विलायत में हैं आप इस वक्त, सर वहां पर जो हिंदुस्तानी हैं जिनसे आप हर रोज मिल रहे हैं, उनका क्या विचार है भारत के बारे में, भारतीय प्रधानमंत्री जी के बारे में? सर और अगर बोल दूंगा तो हंगामा हो जाएगा सर। सर बोलिए ना, हंगामा करिए। ऑन रिकॉर्ड ये है कि ऑफिशियली ये लोग अनऑफिशियल बन के जाते हैं संस्थाओं में और दूसरी जगहों पे, और मोदी और इस किस्म की वो लगाते हैं। पब्लिक नहीं चाहती है। अब सोचिए यहाँ पे एक हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रहेगा जो अनऑफिशियल तरीके से बुला के बोलेगा कि आप ऐसा थोड़ा कर लो यार, देख लो गवर्नमेंट है, तो आदमी सोचता है यहाँ रहना है, वक्त ज़रूरत पे काम आता है तो वो कर देता है। लेकिन दिली तौर पे वो इनकी पॉलिसीज से बिल्कुल Did we just lose his audio? He's got a phone call. Asif Farooqi साहब, are you getting a phone call? उनकी पॉलिसीज से ये परेशान है। आप अभी देख लीजिए सर, ओसीआई कांग्रेस गवर्नमेंट की ये देन थी, ओसीआई और पीआईओ, और इन्होंने अचानक जो है उसके अंदर एक बार ओसीआई आपका हो गया तो यू आर एज गुड एज अ सिटीजनशिप, आपको वोटिंग राइट्स नहीं रहता था। लेकिन अचानक के अंदर बहुत सी चेंजेस ये ला के फिर से आप अप्लाई कीजिए, फिर से आप सारे अपने पासपोर्ट्स और दूसरी सब डिटेल्स दीजिए और फिर से रजिस्ट्रेशन कराइए। तो यहाँ की जनता अंदरूनी तौर पर परेशान है। लेकिन हम डरते हैं सर, ये तो अपनी जो काम करते हैं दुश्मनी की वो करते हैं, पॉलिसी पे काम करते हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कोई सवाल जवाब इनसे नहीं करता है। वरना ये तो इनकी पॉलिसीज बड़ी खराब करते जा रहे हैं। यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो ओसीआई कार्ड है, हाँ, उसमें वो मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बहुत, कहने का मतलब ये। वो बहुत जी, हमारा ये था ओसीआई का सर कि एक बार आपको ओसीआई मिल जाती है तो यू आर एज गुड एज अ इंडियन सिटीजन, एक्सेप्ट कि वोटिंग राइट्स नहीं रहते थे। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको भारत आना हो, कुछ आना हो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग हो जाता था सर आपका, एंड टू रजिस्टर एनीवेयर आपको एक बुकलेट मिल जाती थी और एक वीज़ा रहता था जो लाइफ लॉन्ग रहता था। लेकिन अब उसको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराइए, गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर उसमें करेंगे, फिर ये माइनॉरिटीज़ अलग करेंगे, मेजॉरिटी अलग करेंगे, उसमें तो 3-5 करेंगे, सब परेशान करने का इन्होंने काम कर दिया है, जिसके नतायज बड़े ख़राब आएंगे फ्यूचर के अंदर कि आदमी परेशान हो जाएगा सर। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मनमोहन सिंह साहब के वक्त एनआरआई मिनिस्टर भी हुआ करते थे, हमारे जगदीश टाइटर साहब एनआरआई मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस भी करी थी यहाँ पे बॉम्बे में। जी बताएं सर। सर आज दुबई के अंदर 22,000 हिंदुस्तानी फैमिली जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है सेटल डाउन होने के लिए इन दुबई। तो यू कैन इमेजिन कि ये किस टाइप के लोग वहाँ से निकल रहे हैं। ये कोई वर्कर क्लास नहीं है, ये जो अच्छा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते थे हमारे हिंदुस्तान में बैठ के, क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं है, आपकी पॉलिसी पीछे पड़ के उनको परेशान करने की है, इसलिए ये फैमिलीज़ ने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है, जो कि आगे आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट आएगी
उसके लिए परेशानी का बात बनेगी अनलेस एंड अनटिल इस पॉलिसी को हम लोग अच्छे तरीके से फिर से उसको चेक करके सही ना करें। आसिफ जी, आई वांट टू नो, यहाँ पर बहुत मीडिया में टॉक है जिस प्रकार से स्ट्रिक्टली और वेरी कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज हैंडल्ड द खालिस्तान इशू इन यूके, स्पेशली लंदन। वहां पर एनआईए का केस रखना, एनआईए के ऑफिसर्स वहां पर विजिट करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक्शन लेने के लिए पुश करना, प्रेशराइज करना। तो हाउ डू द लोकल सी दैट द एक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? क्या उनको लगता है वेरी कॉन्फिडेंट असर्टिव एक्शन सरकार की तरफ से जा रहा है? बिकॉज एम्बेसी पर अटैक हुआ था, आप इस तरफ, यू आर राइट नाउ इन यूके, हाउ डू यू सी दैट? व्हाट इज द जनरल रिएक्शन अबाउट द इंडियन ऑडियंस देयर? सर, जो सवाल आपने पूछा है वो आम जनता के अंदर तो नहीं है, लेकिन एक सवाल उसी सवाल से मिलता जुलता आपको कनाडा वाले इश्यू पे मैं बता दूं। जी बोलिए। हो रही है हमारी इतनी खराब चीज जा रही है, हम कुछ भी बोलते रहे सर। दे हैव गॉट ऑल द एविडेंस, वो इनको हलफ में अटक चुका है, इनको परेशानी हो गई है और वो हमारे कल्चर के लिए, हमारी पॉलिसी के लिए बहुत ख़राब एक एग्जाम्पल हो गया है जो इन्होंने कनाडा का किया है सर। और मुझको नहीं समझ में आता है कि ये किस तरीके से हम लोग अपनी इस ख़राब पोजीशन को बचा पाएंगे। तो इस किस्म के वाक़े बीजेपी गवर्नमेंट ने आके इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है उससे फ़ायदा तो नहीं है, एक आम जनता को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा और उसका बड़ा ख़राब रिजल्ट आ सकता है। आप अगर पिछले दिनों देखें सर, लंदन के अंदर, यूके के अंदर देख लें, कनाडा में देख लें, यूएस के अंदर देख लें कि आज गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर इंक्लूडिंग कि हम मिनिस्टर्स और इनके वाइस प्रेसिडेंट तक इंडियंस बन रहे हैं। और उसमें क्यों बने हैं? इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, इसमें इंडिविजुअल लोगों ने आके यहाँ पे मेहनत की, इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने ये काम किया। और लेकिन उस टैलेंट के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने जो कनाडा का पॉलिसी के साथ किया और जो जिस तरीके से वो वाक़या है सर, वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है सर। एंड आई थिंक वी शुड बी अशेम्ड इन द फ्यूचर अगर वो उन्होंने एकदम सरफेस पे लेके आ गए उसको और सारे प्रूफ उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अगर आ जाएगा तो ये बड़ी हमारे लिए ख़राब बात होगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अभी अभी जो इस वक्त फिलिस्तीन में जो मसला चल रहा है गाज़ा में, उसके पहले जिस प्रकार मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इजराइल को सपोर्ट किया, इजराइल का समर्थन किया, हमास को अटैक किया, उसका क्या रिएक्शन हुआ है सर यहाँ इंडियन कम्युनिटी में? couldn't hear it. आसिफ सर, फारूकी आपने देखा होगा जी कि इन्होंने 3 रोज पहले इजराइल का सपोर्ट कर दिया जी अपनी, इससे आपको क्या, और 2 रोज के बाद फिर कि नहीं हमारी पॉलिसी फिर वही रहेगी जो पैलेस्टाइन के साथ में जी। इससे आपको क्या समझ में आई? इसके आपको समझ में आई कि इनके पास कोई डेटा या किसी बैकग्राउंड के ऊपर इनके फैसले नहीं होते हैं। इनके फैसले राजा महाराजा अपनी मर्जी की तरह से होते हैं कि हमको कांग्रेस की और पिछली पॉलिसी थी हम उसके अगेंस्ट करेंगे, लेकिन इनको अंदरूनी तौर पे बहुत फटकार हुई जब इन्होंने सारे डेटा देखा कि बोले हम तो अपनी जगह से बहुत बेइज्जत हो जाएंगे, तो इनको अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा और उन्होंने वही पॉलिसी अख्तियार की जो इंडिया गवर्नमेंट पिछले 70, 80, 100 सालों से कर रही थी। और ख़ास तौर से 60s के बाद जो पॉलिसी बनाई थी, जो नाम का आया था, तो उस पॉलिसी में हम लोग लीडर थे और लीडर हैं और रहेंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने गलत चीज़ पे फोकस कर दिया और इसराइल को सपोर्ट कर दिया तो इंडिया को खुद लगा, बीजेपी गवर्नमेंट को खुद लगा कि इसमें हमारी भूल हो जाएगी, इस पर ये लोग पॉलिसी वापस लेते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग है थी और आगे रहेगी सर, और इसी पे इनको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो इन्होंने फैसले किए हैं नए गवर्नमेंट में वो गलत साबित होंगे और उसका खमियाजा हमको और आवाम को भुगतना पड़ेगा। Right, thank you very much, Mr. Asif Faruqi. Great pleasure talking to you, Mr. Asif Faruqi, joining us from London and giving us the view of India from the UK. Thank you very much, sir. Thank you. All the best. Namaskar, sir. God bless you. Thank you.
Mr. Asif Faruqi joining us from London. Yes. And that is one particular point of view, whereas he says, and it is absolutely true, we first came out in support, looked like we came out in support of Israel, which we did. We attacked Hamas and condemned Hamas, which is absolutely true. We should, because we condemn all acts of terrorism. And after that, we came back with a balance when we realized that the bombing that Israel is indulging in is taking a lot of innocent lives. So I don't see anything wrong with that. By the way, I don't agree with Mr. Faruqi. And what was more, I liked, I wanted his comments on what happened, how the people, Indians in London thinks about the action taken on Khalistanis. Yes. That was something that he we tried to avoid it very easily. He only wanted to talk about Canada. He didn't want to talk about London. Yes, yes. My point is, even if it is true that we actually knocked off this guy in Canada, I will be very proud. I'm very, very proud. More power to RNAW and more power to everybody else. And knock off these guys. And I think one or two was knocked down in UK itself. And some in Pakistan. Bilkul. So let's be very clear. And today US telling us that you are going to knock out Pannu, we save Pannu. It's whatever you call it, because these are all responsible nations. This is the biggest powerful country in the world telling India that we don't like you knocking out Pannu in our country. Well, then arrest him. Because he's indulging in anti-India activities. He is actually instigating people to indulge in violence against Indians in Canada and in the US. सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा ही कॉन्सुलेट जो है उसको जलाया गया, उस पर अटैक किया गया इन पन्नू साहब की वजह से. उन्होंने इंस्टिगेट किया लोगों को. Now, my point is, as far as the Americans are concerned, the Americans don't think that the problems of the rest of the world are their problems. Yes, exactly. They are not concerned unless and until it hits them in the face. Bilkul. Let's be very clear. 9/11 happened and they suddenly woke up to the fact that, hey, there is somebody called Osama bin Laden. You know, the rest of the world was telling them, the Israelis were telling them, hey, listen, these guys are going to kill you. Nobody believed them. And as far as these chaps are concerned in Canada, all these so-called Khalistanis, they are all mafia dons. They are selling drugs. All these drugs are being supplied all over Canada. Exactly. And by the way, in the United States. Bilkul. It's only when the problem blows up in the face of the United States of America that America will realize that, hey, the Indians were right. Maybe we should work with them. I mean, now it's their interest that is, whatever interest, how can Pannu be a big interest for them? It seems to be counted. But this is not the way how, if you have a relationship with the country, if their interests are being hurt, it's your duty to take care of it. And if he's openly telling you about don't fly in this particular flight after 18th or 20th or whatever you call it, then it is something very serious. he's actually He's got information on terror acts. He's actually threatening to blow up our aircraft. Exactly, sir. Our passenger aircraft. Bilkul. Now the problem is Americans will be affected only if an American airliner blows up. Otherwise they won't be. Other lives are of no consequence to Americans. Let's be very clear. And as far as the Israelis are concerned, they're with the Israelis because the Jewish lobby is very, very strong in the United States of America. Which is why each time anything happens in Israel, Mr. Antony Blinken, Secretary of State, who himself is a Jew by the way, is right there with the Israelis. In fact, they have already begun firing on the Syrian troops in the various spots of Syria, and you got the whole warship out there. Because they said that these areas were being controlled by the Iranian Hezbollah. Yes, that's what they said. Now my point is, when America goes out and kills a few people, that's justice. When India tries to protect itself, that's terrorism. You gotta be kidding me. It doesn't work like that. As Mr. S. Jaishankar said, it's only when my interest becomes your interest that your interest will become mine. Exactly. Otherwise, thank you very much. That's it. And number two, you don't want our business? We'll take it elsewhere. Let's be very clear. At the moment, we've ordered how many planes, Pradeep? 200 planes from the US. The biggest order of the probably aviation industry. Yes. You don't want it? The French are waiting. The Germans are waiting. Please come, take our aircraft. Thank you very much. We have no problem at all. Let's be very clear. This is what India has said. India's interest is India's interest. That's it. We will fight only for what is good for India.
not what is good for the United States of America. The Americans will fight for what is good for the Americans, and wherever our interests match, we'll shake hands, and wherever we don't, we'll say thank you very much. See you another day. That's it. I think the Americans should realize that. And if they don't, well, they don't. That's all there is to it. I like this guy, this S. Jaishankar, the foreign minister, and the kind of robustness and a kind of assertion and aggressiveness that he has brought into Indian foreign policy, which I think was long overdue. You don't talk openly about our economic policy. I'm sorry, the external affairs. Yes. But he has been openly flouting it. Said we are going to deal with them. We are going to talk to them, and it's our interest to do so. Yes, absolutely. Right, now let's come to Mumbai. Let's talk about a subject which is very close to our heart. We have a very old friend from the Aam Aadmi Party, Mr. Mahmood Deshmukh, with us. याद रखें, महमूद देशमुख साहब वो शख्सियत हैं जो अकेले लड़ रहे हैं आज तक स्लम ड्वेलर्स के लिए, झोपड़पट्टी वासियों के लिए, और कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। बाकी जितनी पार्टियां हैं उन्होंने स्लम लॉर्ड्स को इस्तेमाल किया, माफियाओं को इस्तेमाल किया, वहां पे स्लम एस्टेब्लिश किए, वोट बैंक बनवाया, और अब बिल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं। बिल्डर्स का जो माफिया है उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि उनको डिमोलिश कर लिया जाए और वहां पर बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएं जिसमें उनके हजारों करोड़ बने। लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर महमूद देशमुख ऑफ द आम आदमी पार्टी। महमूद देशमुख साहब नमस्कार। नमस्कार। महमूद देशमुख साहब, आप अकेले शख्स हैं मुझे लगता है पूरे मुंबई शहर में, या आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो असल में गरीब लोगों के बारे में बात कर रही है। अकेले आप खड़े, अकेले। मतलब हमारे पार्टी के नाम में ही आम आदमी है, तो हमारी लड़ाई आम आदमी की है। जी दुरुस्त बात है। तो अभी आगे लड़ाई कहां तक पहुंची सर? जो बैंड्रा का जो स्लम था वो कहां तक पहुंची, और जो बाकी जो स्लम है जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो लड़ाई कहां तक पहुंची, उसके बारे में जरा बताएं हमारे दर्शकों को। महमूद देशमुख साहब। देखिए, बांद्रा वेस्ट की लड़ाई जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बिल्कुल बढ़िया आ रही है, बोलिए। बांद्रा वेस्ट की लड़ाई जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि हाई कोर्ट का तो आपने सुना ही होगा, हाई कोर्ट के जज का क्या स्टेटमेंट था, क्या कहना था। तो उन्होंने तो निराश कर दिया लोगों को, लेकिन उस देश के संविधान ने मतलब एक उपलब्धि दी है कि अगर हाई कोर्ट में अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहां के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में मैटर एडमिट करके लिया गया जी। तो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं इस देश के संविधान पे हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। वहां के बांद्रा वेस्ट के, महाराष्ट्र नगर, शास्त्री नगर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। जबरदस्त। लगातार आपके जो बीएमसी जो अधूरा काम है, जैसे आपके साथ हम लोग शास्त्री नगर कलीना में भी काम किए, वहां पर न पायवाटा ठीक था, जो पैसेंजर्स वो ठीक नहीं थे, रोड्स वो ठीक नहीं थे, वो जो ड्रेनेज लाइन जिस प्रकार से चल रहा था वो ठीक नहीं था, पानी नहीं आ रहा था। आज भी वही हालत वहीं पर है। तो ये कैसे, कोई प्लान है आपके पास जैसे इसको कैसे सुधारे? बिकॉज ये बहुत बड़ा समस्या है स्लम ड्वेलर्स को। देखिए, ऐसा है ना प्रदीप जी, उसका कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका में कोई सरकार नहीं है। 2 साल से ज्यादा हुआ है कारपोरेशन बर्खास्त हुए और चुनाव लिए नहीं जा रहे हैं। ये आपस की राजनीति में चुनाव को छोड़ रहे हैं, चुनाव नहीं करवा रहे हैं, और उसकी वजह से प्रशासन जो है वो हावी है। प्रशासन अपनी मनमानी करता है, इनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। तो इनके मतलब इनको पूछने वाला कोई नहीं, किसी को जवाबदेही नहीं है, इसीलिए मतलब कहीं काम नहीं हो रहा है। अब लोगों की परेशानी है कि लोग जाए तो किसके पास जाए। ये सिर्फ मतलब कालीना की बात नहीं है, हमारे बांद्रा ईस्ट में भी बात है, पूरे मुंबई शहर के अंदर यही हालात है। कहीं पानी का मसला है, कहीं रास्ते का मसला है, कहीं कचरे का मसला है। और जो अब सिंधे सरकार जो बैठी है ये सिर्फ एडवर्टाइज में मस्त है। आज मुंबई शहर का जो 52,000 करोड़ का बजट है वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ये डिटेल में कोई बताना नहीं चाहता, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। कहीं ब्यूटिफिकेशन के नाम पे काम किया जा रहा है। ज्यादातर तो मैं समझता हूँ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बाकी लोगों का कुछ काम नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताएं महमूद देशमुख साहब, ये कहा जा रहा था बड़े जोर शोर से, हर जगह पे बहुत बड़े बड़े बैनर लगे थे, आपने भी देखे होंगे, पढ़े होंगे हर जगह पे,
बसेस पे, बेस्ट की बसेस पे, और क्या बोलते हैं प्रदीप जी, होर्डिंग्स लगी थी बिल्कुल बिल्कुल कि आपला दवाखाना हर जगह पे बाला साहब ठाकरे के नाम से। अरे सर, किसी स्लम में दवाखाना बना है कि नहीं? अभी मैंने देखा नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बना है क्या? बहुत अच्छा सवाल उठाया सर आपने। ये पहली बात मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, ये जो आपला दवाखाना इन्होंने ये जो कॉपी किया हुआ है, ये हमारे राष्ट्रीय हमारे संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चालू कर दिया, उसको कामयाब बनाया हुआ है। और उधर भी पंजाब में भी, पंजाब में भी जी, पंजाब में भी चालू किया। पंजाब में तो 15 अगस्त में उन्होंने एक साथ लगभग 500 जगह पे मोहल्ला 650 सर, 650। हाँ, ये भारत के इतिहास में एक पहला राज्य ऐसा होगा या पहली पार्टी ऐसी है जिन्होंने एक ही दिन में इतने सारे पैमाने में मतलब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है। और मैं कहता हूँ ये इनको हमारे अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। और अभी जैसे मुंबई शहर की आप बात करते हैं, आपला दवाखाना इन्होंने जगह जगह पे जहां इन्हें जगह मिली है कहीं कंटेनर ला के डाल दिया है, लेकिन कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, ये सब शिकायतें हैं। और कहीं मशीनरी नहीं है ना, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने भले ही मतलब कंटेनर डाल के आपला दवाखाना बताया हुआ है, लेकिन ये कामयाब नहीं है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जो पोल्यूशन कंट्रोल, जहां हमने देखा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि 1000 वाटर टैंकर हम लोग पूरे मुंबई, ठाणे, मुंबई के सड़क पर पानी डाल के डस्ट को कंट्रोल करेंगे। वहां आदित्य ठाकरे जी का कहना है कि ये कुछ ढंग ठीक कर पोल्यूशन कंट्रोल। पर सेम टाइम हमने देखा कि केजरीवाल जी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जिस प्रकार से प्लान्ड तरीके से विंटर पोल्यूशन प्लान के तहत वहां पर कंट्रोल अच्छा कोशिश किया है। और पंजाब में स्टबल बर्निंग भी रोक दिया, फार्म फायर्स 50% कम कर दिए, मेहनत बहुत की है। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है कि ट्रिपल इंजन ज्यादा काम नहीं कर रहा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए? जो आदित्य ठाकरे का चार्ज है कि ये बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है, क्या वो एलिगेशन आप भी उस पर कायम है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये जो सरकार है, ये पहली बात तो ये असंवैधानिक सरकार है, गैर कानूनी सरकार है। इसका फैसला बहुत जल्द ही आने वाला है और ये अपने आप को संभालने में व्यस्त है। और जैसे भी आपने कहा कि 1000 टैंकर, 2000 टैंकर, प्रदीप जी, नंबियार जी और बजाज साहब, आप भी मुंबई शहर में रहते हैं, आपने कहीं देखा किसी रास्ते को धोते हुए? ये टैंकर अभी कौन से टैंकर है, मुझे अभी तक नहीं दिखा। कहाँ चला जाता है, वो यही बता सकते हैं। मुझे अभी तक नहीं दिखा। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये नहीं दिखा ना सर, ये सिर्फ हवाई बातें हैं, हवाई बातें हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुंबई शहर में प्रदूषण जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, हालात बद से बदतर है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। और जैसे अभी आपने आपला दवाखाना कहा, लेकिन उसके सामने जैसे हमारे यहाँ पे बांद्रा ईस्ट में वीएन देसाई हॉस्पिटल है, आप अगर वहां जाके देखेंगे तो दवाइयों का मसला है, वहां पे मशीन्स नहीं है, बहुत सारे मतलब इश्यूज है कि लोगों को मतलब पेशेंट्स को उस तरीके से सर्विस नहीं मिल पा रही है ना। तो आप जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बीएमसी के हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे तो वो सर्विस तो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप मतलब नकल करके अपना दवाखाना बता के मतलब लोगों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो। जी, अभी जो धारावी प्रोजेक्ट आपने ले लिया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अभी उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस, वर्षा गायकवाड़ जी सब मिलकर एक प्रकार का आंदोलन तरीके से जो नए कानून बनाए थे कि आपको अगर टीडीआर लेना है तो अडानी से ही खरीदना पड़ेगा, तो अलग अलग जो कानून बनाया चेंज करके अडानी जी को फिर, तो इसको आप कैसे देखते हो? ये लड़ाई कैसे आप आगे लेके जाएंगे? बिकॉज ये जो कंपल्शन है कि अगर टीडीआर चाहिए तो आपको यहीं से लेना पड़ेगा, और फिर वो पूरे डीसीआर में किस प्रकार से चेंजेस, जिस टीडीआर का स्ट्रक्चरिंग वगैरह, ये कैसे देखते हो आप? आगे जाकर क्या होगा? देखिए, एक बात तो ये सिद्ध हो चुकी है कि वो केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार हो, ये सब अदानी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने ये सबूत दे दिया है। जैसे धारावी की जो बात आपने कहा, धारावी में इन्होंने ये कहा है कि रेडी रेकनर के हिसाब से 90% रेडी रेकनर के 90% कॉस्ट से आपको टीडीआर खरीदना होगा, और वो कंपलसरी है।
मतलब 40% FSI को मतलब TDR को खरीदना ये कंपलसरी है। तो ये जाती है इस मतलब रियल एस्टेट के मामले में, या मुंबई शहर में पहली बार या महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा कोई हो रहा होगा कि कोई मतलब सरकार किसी विकासक के डेवलपर के फेवर में मतलब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करती है, और कैबिनेट में, जबकि मेरे जानकारी के हिसाब से कैबिनेट में कई अधिकारियों ने इसका अपोज किया, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गई और ये प्रस्ताव पारित किया गया सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए। ये जो सरकार है ये उद्योगपतियों की सरकार है, उसमें भी अदानी की सरकार है, ये आम जनता की सरकार नहीं है। और मैं आपको फिर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। देखिए सवाल टीडीआर से फायदा किसको होना है? डेवलपर्स लोगों को होना है। मैं तो उसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो हुआ ये बता रहा हूँ। हमारी लड़ाई है धारावी के जो नागरिक है और यह मुंबई शहर में जो भी आम आदमी है, जो भी झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी है, उनकी लड़ाई है। उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी उसके लिए लड़ने के लिए सक्षम है। अभी 4 दिन पहले भी हम लोग शिवड़ी में जिजामाता नगर वहां गए थे, वहां पे 3000 लोगों का मसला है, वहां पे 2 लोग वहां पे आमरण उपोषण पे बैठे थे। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कुछ बिल्डर ने उनसे वादा किया है कि मैं आपकी बातें मान लूंगा, आपकी मांगे पूरी करूंगा और काम करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा कभी होने वाला नहीं है। प्रदीप जी, नंबियार जी, मैं बजाज साहब, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही मांग करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ये सारे जो है ना, ये सारे स्कीम ही कैंसिल कर दे। ये सारे सबसे बड़ा मतलब स्कैम है इस मुंबई शहर के अंदर। जहां मतलब प्राइम लोकेशन है, ग्रीन प्रॉपर्टी है, वहां पे डेवलपर जाते हैं डेवलप करने के लिए, या अदरवाइज बाकी जैसे अलग जहां पे रेट नहीं मिलता है वहां पे कोई एसआरए की स्कीम लागू नहीं होती है, एसआरए की स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो मैं तो कहता हूँ इसको स्क्रैप करना चाहिए एसआरए की स्कीम को, और गवर्नमेंट ने जैसे मतलब डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट ने पूरा अपने हाथ में लेके लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। जैसे पहले जो ओरिजिनल आइडिया था, ओरिजिनली यही आइडिया था शरद पवार जी के वक्त कि सरकार खुद डेवलप करके देगी। करेक्ट जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन एक चीज तो है प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल जो महमूद देशमुख साहब बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारी करप्शन जो आती है अगर आप देखें रियल एस्टेट बिजनेस में, वो एसआरए स्कीम्स की वजह से आती है साहब। जहां जहां पर एसआरए स्कीम्स हैं, स्पेशली जहां जहां पर स्लम्स जो हैं वो प्राइम लोकेशंस पर हैं, वहां पे एकदम भ्रष्टाचार शुरू होता ही है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बात कोई मानेगा क्या? महमूद देशमुख साहब बताएं। देखिए सर, कैसा है, आम आदमी पार्टी का काम है, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते ये मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है आवाज उठाना, और हम आवाज उठाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी आम आदमी की लड़ाई लड़ते रहेगी। आज अगर मुंबई शहर में जहां भी अगर आप देखेंगे, ज्यादातर हर झोपड़पट्टी में है ना, हर झोपड़पट्टी में, हर स्लम इलाके में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो लोग परेशान हैं। परेशान इसीलिए है कि भाई डेवलपर कहीं किराया नहीं दे रहा। अभी आपको आपकी जानकारी के लिए शायद मालूम है, एसआरए में एक नया नियम आया है कि डेवलपर ने 2 साल का किराया एडवांस में जमा करना है और 1 साल का पीडीसी देना है, पोस्ट डेटेड चेक देना है। मतलब 3 साल का उसको किराया एसआरए में जमा करना है, उसके बाद ही उसको एलओआई मिलेगा, सीसी मिलेगी, आईओए मिलेगा। इस तरीके से काम होता है ना। लेकिन उसके बावजूद अभी फिलहाल तो सब काम रुका पड़ा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसके पहले के जो लोग फंसे पड़े हैं, 10-10 साल लोगों को किराया नहीं मिला हुआ है, लोग बाहर किराए से मतलब जो दूसरी तरफ कहीं किराए पे रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको घर कैसे मिलेगा? उनके बारे में गवर्नमेंट कुछ सोच नहीं रही है। और कितना साल लोग अपने घर के बाहर रहेंगे, आप बताइए ना जी। आज आपने कानून लाया ना, लेकिन पहले से जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, अपना घर, जिन्होंने अपना घर खाली करके दे दिया है और दूसरी तरफ कहीं किराए से रहते हैं, हर साल 11 महीने के बाद में उनको अपना घर बदलना पड़ता है। वो उनका क्या होगा? उनको घर कब मिलेगा? उनके बारे में ये सरकार कब सोचेगी? गरीब आदमी के बारे में सरकार के पास सोचने का समय नहीं है, क्योंकि ये सरकार ही मतलब अदानी और अंबानी की है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बेचारे जो थे, एक तो अपने घर से वंचित हो गए, उसके बाद बिल्डर ने किराया देना बंद कर दिया, और आज की तारीख में लोगों से कर्जा ले लेके, साहूकारों से कर्जा ले लेके, कर्जे के मतलब पहाड़ के नीचे
बहुत लोगों ने तो अपनी जान भी दे दी है। मतलब प्रदीप जी और हमने यहाँ पर ना जाने कितनी मर्तबा कितनी बार ऐसी सोसाइटीज भी दिखाई जो रीडेवलपमेंट के लिए भी गई हैं, जहां पर बिल्डर भाग गया है, बिल्डर ने पैसा नहीं दिया है, और कई कई जो बेचारे अधेड़ उम्र के लोग थे उन्होंने दम तोड़ दिया है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके बारे में इंटरवेंशन नहीं किया है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो बताएं ना सर। देखिए, इसका सोल्यूशन ऐसा है ना कि सरकार को ही निकालना होगा और जनता को भी जागरूक होना होगा। जनता के बीच जो बैठे हुए लोग हैं, इसकी सबसे मेन वजह यह है कि पब्लिक लड़ाई लड़ने के लिए मतलब किसके पास जाए, उम्मीद किससे करे। जब कोई परेशानी आती है तो पब्लिक किसी लोकल नेता के पास जाती है, वो नगर सेवक होगा या विधायक होगा या फिर सांसद होगा, एमपी होगा। लेकिन मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि जितने भी, और यहाँ पे आज यहाँ मुंबई शहर का यही हाल है, मुंबई शहर में अगर स्लम ये अगर ये दुर्दशा है तो उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। ये राजनीतिक पार्टी के नगर सेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो, ये बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं डेवलपर के साथ में। और डेवलपर इसीलिए मतलब आम आदमी को गिनता नहीं है, आम आदमी की कोई कीमत करता नहीं है। वो कहावत है ना सर, सैया भय कोतवाल फिर डर काएगा। जिसके सर पे विधायक का हाथ होगा, है ना, तो फिर वो बिल्डर किसको डरेगा, आप मुझे बताइए। फिर वो गरीब लोगों के साथ जाती करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये स्कीम को स्क्रैप कर देना चाहिए, ये सारे की स्कीम को ही स्क्रैप कर देना चाहिए और डायरेक्टली गवर्नमेंट का जो एनेक्चर बनता है, आप जैसे क्लस्टर सर्वे करवा के आप एनेक्चर बनवा लीजिए, गवर्नमेंट उनको बना के दीजिए। गवर्नमेंट टेंडरिंग सिस्टम लाए डेवलपमेंट के अंदर, इस सारे सिस्टम में भी टेंडर सिस्टम लेकर आगे, टेंडर लाके जिसके ज्यादा टेंडर होगा उसको दिया जाएगा, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगा और लोगों को भी घर मिलेगा। इसमें ये हो रहा है कि न गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है न जनता का फायदा हो रहा है, बिल्डर इसमें मलाई ले रहा है और जो नेता उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी आप भी जानते हैं बांद्रा वेस्ट का हाल क्या है, आप भी जानते हैं भारत नगर का क्या हाल है। इन्वॉल्वमेंट किसका है आप मुझे बताइए ना। एक बिल्डर इतनी हिम्मत करता है ना, एक बिल्डर सरेआम मतलब उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो किसके बलबूते पे कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है प्रशासन साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन के पास जाओ तो प्रशासन कहता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ है। अब वो हाथ कौन से हैं, है ना, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आवाज उठाई नहीं जाती है जी। ये पूरा सिस्टम टॉप टू बॉटम सिस्टम करप्ट है। एक एसआरए की स्कीम जब आती है तो उसके अंदर नगर सेवक से लेके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। आप मुझे बताइए ना सर, गरीब आदमी का मतलब रहनुमा कौन होगा, रहबर कौन होगा, या उसका मसीहा कौन होगा, उसका मददगार कौन होगा? वो तो पीसा जाएगा, वो तो परेशान होगा और रास्ते पे आएगा। और अब तो तकलीफ ये हो गई है, एक जमाने में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो रवैया होता था वो बिल्कुल अलग होता था। जब भी झोपड़पट्टी वाले उनके पास आया करते थे, कोई पीआईएल आया करती थी यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका, तो वो बड़े सिंपैथेटिक हुआ करते थे। बहुत उनका झुकाव जो था ज़्यादातर स्लम ड्वेलर्स की तरफ था। आज वो भी बदल गया है, अब वो भी कहते हैं यार ये सब लेके जाओ यहाँ से, मतलब एवरीथिंग इज चेंज। बांद्रा वेस्ट के मामले में, बांद्रा वेस्ट के शास्त्री नगर के मामले में उन्होंने कहा, जस्टिस गौतम पटेल उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जब बिल्डर का एडवोकेट कहता है कि हम 20,000 रुपया दे रहे हैं उनको किराया, वो कहते हैं कि इनकी लायकी नहीं है, इनको 20,000 आप क्यों दे रहे हो? ये मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। देखिए, कोई आम आदमी अगर कहता है तो समझ में आता है ना, जो इंसाफ करने के लिए बैठा हुआ है, इंसाफ की कुर्सी पे बैठा हुआ है, इंसाफ करने वाला ही अगर इस तरीके से बात करेगा तो कहावत है ना, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो फिर उम्मीद किससे हो? उम्मीद आम आदमी पार्टी से। बेशक सर, उम्मीद करना चाहिए। मैं कहता हूं इस देश के हर नागरिक ने आम आदमी पार्टी से उम्मीद करना चाहिए, और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, आरोग्य की बात करती है ना, महिलाओं की मतलब बात करती है, बच्चों के भविष्य की बात करती है। हम न जात की राजनीति करते हैं न धर्म की राजनीति करते हैं, हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कोई हजम नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर महमूद देशमुख साहब जी, ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, ये सबको मालूम है
कि अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार दिल्ली के विद्यालयों का यानी स्कूल्स का सुधारीकरण किया। आज की तारीख में दिल्ली के जो स्कूल हैं मतलब ज़बरदस्त है। मनीष सिसोदिया साहब जो इसके कर्ता धर्ता थे, दुखद बात यह है कि आज की तारीख में जेल में हैं। अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक जो सत्येंद्र जैन साहब ने बनाए वो भी अभी जेल में हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए जो आप स्कीम लाए फ्री ट्रैवल फॉर विमेन, दिल्ली में ज़बरदस्त चली, उसमें कोई डाउट कोई दो राय नहीं है। पंजाब में आपने 651 मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिए और वादा भी किया है कि दिसंबर तक जितने भी ज़िला अस्पताल हैं उन सब में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जैसे एक्सरे मशीन है, जैसे MRI स्कैन है, जैसे बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, एक एक चीज़ वहाँ पर होगी। ऐसा भगवंत मान साहब ने वादा किया है और मैं मानता हूँ कि वो वादा पूरा करेंगे। ये सब जानते हुए भी मुंबई की जो जनता है फिर भी आखिर में जो आप बात कह रहे हैं कि ये फला फला राजनेता उसमें इन्वॉल्व है, इस माफिया के आदमी से इन्वॉल्व है और वो स्लम लॉर्ड जो हैं उनके साथ इन्वॉल्व है, फिर भी उन्हीं को जाके वोट क्यों देती हैं? ये बताएं सर। महमूद देशमुख साहब, ये क्या है माजरा, ये प्लीज बताएं। देखिए सही बात सर, देखिए ये जो मुद्दा आपने उठाया है इसके पीछे का कारण है, आपने एक चीज देखा होगा, जब भी चुनाव आते हैं तो वोट ऑफ परसेंटेज क्या होता है वो देखिए, कहीं 45% वोटिंग होती है, कहीं 55 होती है, कहीं 50 होती है, 52 होती है, 100% वोटिंग कहीं नहीं होती जी। ये बात मैं कई बार मतलब ऐसे पर्सनली मैंने कई जगह पे चर्चा की होगी, कई मीटिंगों में मैंने ऐसे लोगों को समझाया होगा, क्योंकि वोटर जो है आज मतलब 100% वोटिंग कहीं नहीं होती है पूरे देश में। 1952 से लेके जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, है ना, 1952 से लेके अब तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 100% वोटिंग कहीं नहीं होती। तो 52%, 55% या 48% ये वोटिंग रेशियो है। ये जो वोट है, वोट बैंक है, ये इसमें मेरा सीधा सीधा कहना है, इसमें ज्यादातर जो वोटिंग होती है वो कुछ धर्म के नाम पे होती है, कुछ जात के नाम पे होती है, कुछ पैसे के बलबूते पे होती है ना, पैसे के लालच में वोटिंग की जाती है। भाई कोई कहता है ये मेरे समाज का है, मैं उसको वोट दूंगा, कोई कहता है मेरी जात वाला है मैं वोट दूंगा, कोई कहता है मेरे प्रांत का है मैं वोट दूंगा, फिर कोई बोले मेरे धर्म का है मैं वोट दे रहा हूँ, और कुछ पैसे के लालच में वोटिंग होता है ना। जब और जो जिसने हकीकत में जो मतलब एक एजुकेटेड क्लास है, जिन्होंने वोटिंग के लिए बाहर निकलना चाहिए, है ना, वो बाहर ही नहीं निकलता इलेक्शन के दौर में। वो कहता है कि भाई एक दिन की छुट्टी मिली है और क्या करेंगे हम जाके वोट करने के बावजूद भी हमें आखिर में जब हमारा जब काम कुछ करवाना पड़ता है तो नेता के पास जब तक हम पैसा नहीं देंगे। जी महमूद देशमुख साहब, आप हैं हमारे साथ? I think his frame is frozen. It's got probably got. Can you just check, please? I don't think Mr. Mahmood Deshmukh is with us right now. Can somebody check it, please? Now, Aam Aadmi Party, as you said, have been doing a fantastic job, but then, yes, where slums are concerned, where the poor are concerned, downtrodden, because आपने देखे जितने 5 states में election हो रहा है, Congress has just copy pasted Aam Aadmi Party's entire manifestos, and yes, they're taking credit for that. And yes, in fact, but the BJP is highlighting that you can't rely on Congress Garib Kalyan Yojana because they have failed visibly where Karnataka is concerned. That is an endless debate. So as you have been always telling that they should learn something from Arvind Kejriwal ji. I think we've got Mr. Mahmood Deshmukh back with us. Mahmood Deshmukh साहब, yes sir, बोलिए। आखिर में महमूद देशमुख साहब, जैसा कि आप कितनी बार बोल चुके हैं, हम यहाँ पे कितनी बार बोल चुके हैं कि भैया अगर तुम भ्रष्टाचारियों को वोट दोगे फिर उसके बाद आकर के शिकायत मत करो कि मेरे साथ ये हो रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? तो सर यही कह रहा हूँ ना मैं कि लोगों के सामने, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, सब्स्टिट्यूट नहीं था। अब आम आदमी पार्टी के रूप में लोगों को एक पार्टी नजर आ रही है जो लोगों के समझ में आ रहा है, इस देश के नागरिकों के समझ में आ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पे काम करती है। इसीलिए 2 राज्यों में, दिल्ली और पंजाब में लोगों ने हमको चुनकर किया, है ना, और आने वाले कल में हम उम्मीद करते हैं कि और भी कई अलग अलग राज्यों में भी हमको अच्छी तरीके से लोग मतलब वोट देंगे और हमारे लोग जीत कर आएंगे। और
ये मुस्लिम रिजर्वेशन जिस प्रकार से आए महमूद देशमुख साहब, बीजेपी हर जो 4-5 राज्यों पर इलेक्शन सब जगह यही कर रहे हैं, हर मंच पर, कि जहां भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है और जहां उन्होंने रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन किया है, उस चीज को हम लोग रद्द कर देंगे। नाउ यहां पर भी देवेंद्र फडणवीस जी पे आरोप लग रहा है कि नॉट ओनली मराठा, डांगर, लिंगायत बट मुस्लिम रिजर्वेशन को भी उन्होंने अंडर द कार्पेट डाल दिया है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। इनफैक्ट कांग्रेस ने भी पृथ्वीराज चौहान जी ने भी प्रश्न उठाया फडणवीस जी के कंडक्ट में। तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन बीजेपी का कहना रद्द करेंगे, कैसे देखते हो आप देशमुख जी? सर देखिए, एक मुझे आप बताइए ना, रिलीजियस बेस्ड का सवाल ही कहाँ है? मुझे आप बताइए, जो धनगर समाज, देखिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार ये बात आती है धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, है ना? तो मुझे आप बताइए ना, आज मराठा समाज के लोग आरक्षण मांग रहे हैं, धनगर समाज के लोग भी आरक्षण मांग रहे हैं, है ना, या लिंगायत समाज के, ये लोग जो आरक्षण मांग रहे हैं, ये भी किसी धर्म में है ना, कि नहीं है? पहले ये धर्म से जुड़े हैं ना, हिंदू धर्म से जुड़े हैं ना, कि नहीं जुड़े हैं? तो फिर मुस्लिम समाज अगर आरक्षण मांगता है, तो मुस्लिम समाज जब आरक्षण मांगता है तो बोलोगे नहीं हम धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन हिंदू समाज आरक्षण मांग रहा है तो आप उनको देने के लिए तैयार हो। तो ये दोहरी नीति है, और भारतीय जनता पार्टी और इनसे तो उम्मीद ही नहीं करता है, और मुसलमानों ने तो इनसे उम्मीद करना ही नहीं चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को आरक्षण देगी। प्रदीप जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। और जो पृथ्वीराज चौहान, हाँ, जो फडणवीस जी पे जो आरोप लग रहा है, आपका कहना है कि सही है, उनका कोई मंशा नहीं है, आशा नहीं है जो? अरे सर, मैं क्या कहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री हो या आज महाराष्ट्र में बैठी हुई जो सरकार है, इनसे ये अगर कोई उम्मीद करता है कि मुसलमानों को ये आरक्षण देंगे, ये उम्मीद करना गलत है। और मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम अभी जैसे स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को इंस्ट्रक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करिए, है ना, सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये सोशल इकोनॉमिकल, है ना, तो ये तो माइनॉरिटी मुस्लिम समाज में भी लोग हैं। जी, अगर जो रेशो आप मराठा समाज के लिए लगाना चाहते हो, उस रेशो में तो मुस्लिम समाज भी है। अगर जैसे आप एजुकेशनल अगर देखोगे तो लास्ट टाइम जो क्राइटेरिया डिसाइड हुआ था, 16% मराठा समाज को जिस बेस के ऊपर आरक्षण दिया गया था, अगर उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जमीन देखिए, खेती कितनी है मराठा समाज के पास, उससे कम खेती मुस्लिम समाज के पास मिलेगी। एजुकेशन के मामले में मराठा समाज से ज्यादा पिछड़ा मुस्लिम समाज आपको मिलेगा, है ना। सामाजिक तौर पर अगर वो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, जमीन जायदाद में, एजुकेशन में पिछड़ा है, मतलब ऑटोमेटिकली वो पिछड़ा है, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इनकी नीयत जो है वो मुस्लिम समाज के प्रति मतलब अच्छी नहीं है। ये मुस्लिम समाज को किसी भी हालात में रिजर्वेशन देना नहीं चाहेंगे, ये, और इनसे उम्मीद करना भी एक गलत बात। मैंने लास्ट टाइम एक बात ये कही थी प्रदीप जी, बोलिए। मैं तो ये कहता हूँ पूरे देश में, देखिए आप मुस्लिम समाज को आरक्षण की बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 6 लाख एकड़ जमीन है जो वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, वो मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड की जमीन है। वो आप मतलब वो मुस्लिम समाज के भलाई के लिए दे दीजिए। वो जमीन जो है कई जगह पे इंक्रोचमेंट हुआ है। यहाँ पे मुंबई शहर में मुकेश अंबानी का जो अंटालिया बना हुआ है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आज इतना प्राइम लोकेशन है वो, और आज कोई भी ऑल पार्टी इसके बारे में आवाज नहीं उठाती है। क्यों? दे दीजिए ना, वो मुस्लिम समाज की जमीन है, मुस्लिम समाज की जो जहां जमीन है, जहां प्रॉपर्टी है, हम उससे रेवेन्यू ले लेंगे और मुस्लिम समाज के भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन उसपे तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है सर। वो तो वक्फ बोर्ड ने उस पर बहुत कोशिश भी करी थी, सब कुछ किया था, लेकिन उस पर आई थिंक देयर इज ऑलरेडी एन ऑर्डर ऑन इट एंड आई थिंक स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन अप्लाइज, यू कांट रियली अपील ऑन दैट। लेकिन एक चीज है महमूद देशमुख साहब, इस पे 2 कमीशन बैठ चुकी हैं। मुसलमानों की छवि को और मुसलमानों के का जो स्टेटस है उसको ऊपर करने के लिए सच्चा कमेटी रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट।
रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के पटल पे भी रखी जा चुकी है 2011 में। उसके बाद ये तय हुआ था कि अब ये पटल पे रख दी गई है, अब तो होगा ही होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस में हिम्मत नहीं थी इसके ऊपर लाने की, और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दिन से ही बोल दिया था कि हम लोग नहीं करेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि अब जा करके वक्त आ गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट के ऊपर एटलीस्ट डिबेट तो हो, अरे बातचीत तो हो, क्या लिखा है उसमें होना चाहिए। क्योंकि कई कई जगह तो ऐसा है, अरे सर मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी है ना, कई कई जगह तो ऐसा लिखा है स्पेशली उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कि जो शेड्यूल कास्ट जो हैं उनका जो दर्जा है उनसे भी बदतर दर्जा है मुसलमानों का कई कई जगह पे उत्तर प्रदेश में और बिहार में। बेशक सही बात, बेशक बेशक सही बात है। ये तो राजेंद्र सच्चर कमेटी में भी यही कहा गया सर जी, लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट में भी यही बातें आती है। लेकिन सच्चर कमेटी रिपोर्ट वाज नॉट सो डिटेल्ड। रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो है वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें एक एक चीज लिखी गई है। और मुझको ऐसा लगता है कि साहब देखिए आज की तारीख में किसी को मालूम नहीं है कि असल में हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं। कोई कहता है 21 करोड़ हैं, कोई कहता 22 करोड़ है, कोई कहता 30 करोड़ हैं। एक सेंसस के मुताबिक तो आज की तारीख में भारत में 14% मुस्लिम समाज, सर भारत में इंडोनेशिया से भी ज्यादा मुसलमान है आज की तारीख में। सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया में भारत में। तो अगर आपके पास 23 करोड़ तबका है एक इतना बड़ा आबादी का, वो अगर पिछड़ा रह रहा है तो देश तरक्की कैसे करेगा? अरे सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना भाई। जी बताएं। ये बजाज साहब, ये जो अभी आपने बात कही, ये मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में भी माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते जी, है ना। राजनीति अपनी जगह पे रही, लेकिन आप इस पहलू को भी देखेंगे तो क्या एक 14% 15% जो समाज है उसको आप बाजू में रख के, मतलब हिंदू समाज के बाद सेकेंड लार्जेस्ट अगर कम्युनिटी कोई है, रिलीजियस कोई है, तो वो मुस्लिम समाज है जी। तो उनको अगर आप बाजू में रख के इस देश का विकास कर सकते हैं क्या? ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं। ये सभी को सोचना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये नैरो माइंडेड है और वोट बैंक की राजनीति, जैसे अभी आपने कांग्रेस के बारे में कहा, यहाँ पे तो सवाल ये उठता है सर, 80-20 वाली बात आ जाती है कि भाई हम 20% को खुश करने जाएंगे, 80% नाराज होंगे, और उसके चक्कर में मुसलमान पीसा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि इसीलिए मुसलमानों ने भी, मतलब आज कई जगह पे तो ऐसा है, वर्षों से कई लोगों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझ रखा था, है ना। मुसलमान वोट बैंक मतलब हमारी जागीर थी, तो मुसलमान भी उसी में पीसा जा रहा था, उसी में खुश हो जाता था। अब मुसलमान कहीं जाग रहा है, तो मैं तो मतलब मुस्लिम समाज से भी मेरी अपील है कि आप किसी की वोट बैंक मत बनिए। ये देखिए कि डेवलपमेंट की बात कौन करता है, धर्म की बात पे जाइए मत। राजनीति करना, जो लोग धर्म की राजनीति करते, और इसके लिए सर मैं आपको ये कहता हूँ, आज तक सत्ता में बैठे हुए जो भी मतलब सेक्युलर पार्टियां थी, वो भी उसके मुस्लिम लीडरान उसके लिए जिम्मेदार है जी। आज अभी जब बात आती है मुस्लिम लीडर्स की या ओबीसी लीडर, ये जितने भी मराठा लीडर हो या मुस्लिम लीडर हो, ये सिर्फ इन्होंने मतलब अपने समाज के नाम पर राजनीति की है, राजनीतिक रोटी सेकी है, बाकी इन्होंने अपने समाज का भला नहीं किया है। दुरुस्त बात। तो आज लोगों को समझने की जरूरत है, लेकिन आज ऐसे नेताओं को घर भेजने की जरूरत है जी। अब मुझे बताइए ना, मुस्लिम समाज के जितने भी नेता हुए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, है ना, कितने मुस्लिम समाज का भला किया है? कभी कितने मुस्लिम समाज के मतलब बारे में आवाज उठाई है? कोई अरे सर, आज अगर वो कोई मुस्लिम समाज का भला कर देगा तो उनके लिए वोट कौन करेगा? यार वोट नहीं करेगा, वोट तो करने की बात है, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है पहले। मैं वही बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में जो मुस्लिम समाज है वो अगर पढ़ लिख गया, उनको नौकरियां मिल गई, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो गया, सब इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, आईटी एक्सपर्ट्स बन गए, अब आर्मी में चले गए, नेवी में चले गए, एयरफोर्स में चले गए, अरे भाई फिर इन नेताओं के लिए कौन वोट करेगा? खुद सोच के तो बताइए ना। बिल्कुल सही कहा आपने सर, लेकिन ये हालात को तो बदलना पड़ेगा ना। बदला है ना, अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने बदला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सामने है, अरविंद जी ने बदला है ना। पूरा दिल्ली का मुसलमान जो है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, उसमें क्या है? करता है बेशक। अरे उनके सबके बच्चे जो है इतने बढ़िया स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, एंड बाय द वे इट इज पीपल्स चॉइस।
By the way, it's not, there's a Y over there, that should be an apostrophe. It's people's choice. So, if you can correct it, or if you can't, you can't. Well, there's nothing that can be done about it. Right? महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मुस्लिम आरक्षण के ऊपर एक लंबा डिस्कशन होगा एक दिन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे, 3-4 और लोगों को भी रखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम समाज के नौजवानों ने भी अपनी आंख खोलने की जरूरत है ना। आप धर्म के नाम पे किसी नेता के पीछे मत जाइए, है ना। जो नेता डेवलपमेंट की बात करता है, जो नेता मतलब आम आदमी की बात करता है, जो नेता सभी समाज को लेकर चलने की बात करता है, उसके पीछे जाइए। जो देश का भला कर सकता है, जो मतलब समाज का भला कर सकता है ना, जो डेवलपमेंट की बात करता है। और सबसे बड़ी बात है महमूद देशमुख साहब कि ये जरूरी नहीं है कि मुस्लिम समाज सिर्फ मुस्लिम को ही वोट दे। अरे नॉन मुस्लिम भी तो भला कर सकता है आपका, ऐसी क्या बात है? मैं वही कह रहा हूं सर, मेरा वही कहना है कि सिर्फ मुस्लिम है इसके लिए वोट देना है, ये छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल गलत है ना, ये वो बंद हो जाना चाहिए। वो किसी मुस्लिम नेता ने भला नहीं किया सर, इसके ऊपर खुल के आप डिबेट करवाइए। जितने बड़े बड़े नेता है, मुस्लिम नेता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक मुस्लिम नेता बनाइए, कल तक बीड़ी पीने वाला नेता, रास्ते पे चलने वाला मुस्लिम नेता आज 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का मालिक बन गया है। ईडी की इंक्वायरी लग रही है इनकी। नहीं, आप बाबा मुसलमान नाम नहीं ले रहे हो आप। राइट, थैंक यू सो मच महमूद देशमुख साहब, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार मुस्लिम आरक्षण पर जब डिस्कशन होगा 3-4 और लोगों के बीच में, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी बात इसी धड़ल्ले से, इसी साहस के साथ रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल रखूंगा सर। मैं देखिए एक बात मैं साफ कहता हूं, मुझे मुस्लिम समाज के नाम पे कोई राजनीति नहीं करनी है। और मैं अगर उस समाज का एक प्रतिनिधि हूं, उस समाज का मैं एक हिस्सा हूं, है ना, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं मेरे समाज के प्रति मतलब समाज की भलाई किसमें है ना, उस समाज के सामने लाऊं, समाज को बताऊं और समाज को दिशा दिखाने का काम, न कि समाज की वोट बैंक का इस्तेमाल करूं और मेरे 10 पीढ़ी का भला करूं। ये मेरी सोच नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद होने के बावजूद आज इस देश का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है एजुकेशन के मामले। जी, देश का पहला एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रफी अहमद किडवाई, डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी, पीडीएस मिनिस्टर भी रफी अहमद किडवाई साहब थे। ऐसी कोई बात नहीं है। राइट सर, थैंक यू सो मच। आप उस ऊंचाई के नेता नहीं रहे ना सर। जी जी, तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, मैं समझता हूं कि वो इस देश के अंदर सभी ने लागू करना चाहिए, सभी ने उस पर अमल करना चाहिए और विकास की बात करना चाहिए, कोई देश आगे बढ़ेगा। वरना जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हम सिर्फ एक दूसरे भाई लोगों की चॉइस है सर, ये तो चॉइस लोगों की है। अब लोगों के ऊपर है वो क्या चाहते हैं। मगर लोग जो आप बोल रहे हैं महमूद देशमुख जी, लोग अभी तक अपने माइंड को कंडीशन नहीं किया। हिंदू का वोट हिंदू को ही जाता है, मुसलमान का वोट मुसलमान को ही जाता है। उत्तर भारतीय आज भी पूरे देश में यही स्थिति है, ये बिल्कुल बदला नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलना पड़ेगा। ठाकुर का वोट ठाकुर को, ब्राह्मण का वोट ब्राह्मण को, वही चलता है। आप कितने यादव का वोट यादव को, जाट का जाट को, बिश्नोई का बिश्नोई को, वैश्य का वैश्य को, बनिए का बनिया को। ये क्या है? नहीं सर, ऐसा है, आप देखिए मुस्लिम समाज ने, देखिए मुस्लिम समाज के अंदर सैयद शहाबुद्दीन नेता हुए, जीएम बारात वाला नेता हुए, है ना, लेकिन मुस्लिम समाज ने उनको नेता नहीं माना। मुस्लिम समाज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेता माना, इंदिरा गांधी को नेता माना, यूपी के अंदर मुलायम सिंह को नेता माना, बिहार में लालू जी को माना, भगुना साहब को माना, शरद पवार जी के भगुना साहब को माना। जी, मैंने कहा हेमवती नंदन भगुना साहब को भी माना नेता। करेक्ट है, बराबर है। तो मुस्लिम समाज कभी मुस्लिम लीडर के पीछे नहीं चला, उन्होंने हमेशा दूसरों को लीडर माना है सर। दुरुस्त बात। लेकिन और हालात जो है, ये जो खराब हुए हालात, ये हाल 2014 के बाद से इस देश के अंदर ज्यादा जहर फैला हुआ है जातिवाद का। अब उसके ऊपर एक बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हैं जिन्होंने पासमंदा मुसलमानों के बारे में बात करी है। सीधी सादी बात है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू वेरी मच मेहमूद Okay, अहमद sir. साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। You know, this is an endless discussion. This can go on Yes. and on and on and on. But then, you know, reforms should happen in the minds of the people, mind of the elected people, And in the fact, mind of the people who are going to vote. And in fact, what the Muslim community, rightfully speaking, should be fighting for is the Delhi model. They should be asking for good schools, good hospitals, good mohalla clinics, or apna dawakhana, whatever you want to call them, seats in the universities, seats in post graduation, and so on and so forth. What kids require today is a great education. You have a good education, you don't need reservation. Let's be very clear. It's an upliftment अपने That's आप हो right. जाता है स्कूल से। और सबसे बड़ी बात Good है schools. और सबसे बड़ी बात यह है कि साहब, Islam is the only religion that I know of, by the way, where the holy book, the Quran itself, starts with Iqra, reading, the reading of the man who knew not how to read. And that word, by the way, to study, reading, is mentioned 650 times in the Holy Quran itself. And yet the Muslim community seems somewhat backward in terms of literacy and in terms of education, which is very, very sad. I think we should start working on that. Right, now I don't think Mr. Kamble can join us because Mr. Kamble is driving at the moment and he himself is driving and he's stuck in a traffic jam and he will not be able to join us. Of course, I hope he'll be here with us tomorrow. In the meantime, we do have some comments. आप लोगों ने कुछ response भेजे. It will be our pleasure to read them out. In the meantime, subscribe to the channel. आप subscribe करें channel को. अगर आपको channel अच्छा लगता है तो like करें, share करें, subscribe करें, subscribe ज़रूर करें. And do send in your comments. आप अपने response ज़रूर भेजें. जैसे भी हों, बुरे हों, अच्छे हों, जो भी हों, ज़रूर भेजें. Let's take a look at some of the comments which have come. This is about Rahul Gandhi. बहुत खूब, निज़ामुद्दीन भाई जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, MN Islam 1985, 1985. ऐसा कहा इन्होंने. Nizam Saab always gets very good. He's got a lot of following and people react. Nan Bapna 3039. ये देखा आलिया सामने आ गई. इनको देश पे राज करना है कांग्रेस को और बीजेपी को देश आगे बढ़ाना है, सेवा करनी है. मतलब ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. देश पे राज करेगी का क्या मतलब? देश क्या तुम लोगों के बाप का है? इसी सोच की बदौलत कांग्रेस पार्टी की आज ये हालत है. ऐसा कॉमन सेंस 3860 ने कहा है. आई थिंक दे टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस. जी आगे बढ़े. आई थिंक बोथ आर फ्रॉम द बीजेपी एंड दैट ऑफ कोर्स इज मिस्टर अली दारूवाला. लवली वन वर्ड बुलशिट. दैट्स व्हाट Harsh Singh 98806. That's the freedom of speech extended. Freedom of speech. Oh yeah, freedom of speech. Congress is the real heart of India. Congress is not the heart but the real shart of India. Shart? What does that mean? You Anyway, need I don't even know what that means. The new slang dictionary. Overfloater 2710. That's what he says. Is that it? Do we have any more? All right, we do. Again, Nizam Sahab, Nizamuddin Zindabad. Amina Mughal 4240. Mr. Nizamuddin Rain always somehow or the other is able to get a very good response. Kareena Kapoor Khan wants to work with KGF star Yash. Mehdi Hassan Hridoy RT3MG says yes. He likes Kareena Kapoor Khan and he likes the idea of Kareena Kapoor working with that star of KGF, which is really and truly wonderful. I like Kareena Kapoor. I also like KGF 3, by the way. Well, That was a lovely sound, movie. yes. KGF 2. KGF 3 is yet to come. I like the movie, by the way. It's very dark, very nasty. I think it had Sanjay Dutt also in it. And very, very nasty movie. I don't think the director, sentimentalized it in any way. And it is a very edgy movie. Very nice. Bit melodramatic, as most of the films are, but really good. My recommendation, movies. watch it. Well, KGF 1, KGF 2, both are really good. KGF 2, by the way, is especially good. Right, that's it from Pradeep ji and myself. आप सब लोग देखते रहें नेशन नाउ. सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके बारे में चर्चा करें अगर दिल करे तो, और ना भी करे तो फिर भी सब्सक्राइब तो करें और ज़रूर अपने कमेंट्स भेजें. एक बार फिर आप सब लोगों को पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से
तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.